Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bihamdillah, once again we are here in that continuity of professional development program at the Alpha Centauri schools. Today's session is not only for teachers, it is also there for parents. They can also utilize that, and students, they can also use that to maximize their results, as our society, specifically nowadays, is too much concerned regarding the grades, regarding the marks, as the competition is increasing day by day. So I'm repeating that today's session is not only for teachers, it is also there for parents and for students as well. Number one thing. And number two, whatever will be there in the session today, it is not for some specific sort of students or specific age level or specific grade. It can be utilized at every level, at every grade, the students with every age, or generally that even professionals can utilize it, targeting certain areas where we usually face problems. So taking a start with this, with Bismillah, our today's session is regarding teaching methodology or regarding teaching strategies, or being precise, teaching strategies based upon preferred learning styles. What is this preferred learning mode or preferred learning style? We'll discuss in detail. In the next phase, we'll go for its practical application. That usually methodologies are there, shoulds are there, that we talk about different demands from the teachers, different demands from the students, that a teacher should do this, a teacher must adopt this, teacher should maintain this in classroom, teacher should work upon this skill of the child. But how will all that be done within 40 minutes or within those available resources? It's a prime target today. हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जो कह लें टीचर्स से की जाती है, स्टूडेंट्स से डिमांड की जाती है कि स्टूडेंट्स को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये स्किल उनकी इम्प्रूव होनी चाहिए, ये एरिया उनका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। टीचर से डिमांड की जाती है कि वो बच्चों की इस स्किल पे काम करें, वो बच्चों के इन एरियाज़ को कवर करें, वो बच्चों की ग्रूमिंग भी करें, वो बच्चों की रीडिंग राइटिंग स्किल्स भी। अ ह्यूज लिस्ट इज़ देयर। लेकिन प्रॉब्लम हमेशा वही है कि 40 मिनट या 45 मिनट्स की यूजुअली एज स्टैंडर्ड क्लास इज़ देयर। क्लब क्लासेस हैं तो 80 मिनट्स की हो जाएगी। टाइम स्पैन, टाइम लिमिटेशंस आर देयर, दैट टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट एलोकेशन, दैट हाउ मेनी लेसन्स आर देयर अवेलेबल पर वीक फॉर दैट सब्जेक्ट। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। हमने कंक्लूसिवली आज कोशिश करनी है कि एंड पे हम इसको कहीं कंक्लूड करके उठें कि जो कुछ स्ट्रेटजीज़, जो कुछ मैकेनिज़्म, जो थियरीज़, जो आइडियालॉजीज़, जो कॉन्सेप्शंस, जो सजेशंस भी हैं, उनको प्रैक्टिकल फॉर्म में 40 मिनट के अंदर कैसे लेके आना है। कि मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, वेदर इट इज़ कंसर्न विद लैंग्वेजेस, इट्स कंसर्न विद साइंसेस, इट्स कंसर्न विद सोशल वैल्यूज़ और वैल्यू एजुकेशन, और इट्स कंसर्न विद एथिक्स और रिलीजियस एजुकेशन, और द आई कॉल इट द एजुकेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, वट एवर इट इज़, कि इसको 40 मिनट में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द मेथडोलॉजी, there are certain questions which I usually face being a humble student of this department, as I always learn. This question is always there in front of me, and I'm throwing this question to you as well, that what methodology I am adopting, or what is my methodology, respected ma'am, if I take a start from you. Shortly, if you just tell us that what subject you are teaching, at what level, and what methodology you adopt usually. MashaAllah. Okay, that all the subjects, but how? अगर one by one हम इसको ले लें कि that you are dealing with two languages there, Urdu and English. Along with that, you are also dealing with what now GK, general knowledge is there, clear, or Islamic studies, I call it value education is there, or the education of humanity is there. Basic scientific concepts are also there. We call them science concepts, or the concepts regarding surrounding based upon observations of the children. अगर इनको हम वन बाय वन लें तो कोई आइडिया?
बिल्कुल रीडिंग है उनको लेके चलना है, इसमें थोड़ा होता है किस तरह की जी, let me make it simple for you, ji. That whenever we go for certain questions, being honest, that usually there is no specific answer. Usually we talk about general things. Generics are there, that this thing is done. Clear? When I ask that when, how many times per week, for what purpose, usually we don't get the answers. Okay? A general sort of teaching, usually, I'm not saying all the time, usually, generally it is there. ख़ास तौर पे मेरे जैसे, अगर मैं अपने जैसे एक एवरेज टाइप ऑफ टीचर की बात करूं, तो इन सवालों के जवाब हमारे पास कोई फिक्स नहीं होते कि कौन सी मेथडोलॉजी है, वो मेथडोलॉजी किस ऑब्जेक्टिव के तहत अडॉप्ट की जा रही है, किस स्किल पे काम करने के लिए, कितने मिनट्स में कौन सा काम होता है, इनिशियल फेज़ में प्री टीचिंग स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, पोस्ट टीचिंग स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, या उन टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के अंदर रहते हुए किस स्किल को पे काम करने के लिए कौन सा मैकेनिज़्म अडॉप्ट किया जा रहा है, और वो पर वीक कितनी दफ़ा अडॉप्ट किया जाता है, किन बच्चों पे किया जाता है, किन पे नहीं किया जाता. तो यूजुअली वी डोंट गेट द आंसर्स. यूजुअली होता क्या है, द वे आई स्टडीड फ्रॉम माई टीचर, वी कॉपी इट. जिस तरीके से मैंने पढ़ा, जिस तरीके से मैंने लोगों को पढ़ाते हुए देखा, मैं भी उसको अडॉप्ट कर रहा हूँ. या इवन आफ्टर डूइंग बीएड एमएड, कि वो एक बुकिश नॉलेज है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ भी लिए, आइडियाज़ माइंड में होते भी हैं, लेकिन उनको एग्जैक्ट एक प्रैक्टिकल शेप कैसे देनी है क्लास के अंदर, प्लान के अकॉर्डिंगली. क्लियर? दैट इज़ वेल प्लान्ड. जो प्लान अपनी ऑब्जेक्टिव क्लैरिटी हो उसमें, कि व्हाट पर्पस इज़ देयर, कि विद व्हाट मैकेनिज्म, विद व्हाट आइडिया, क्लियर, विद व्हाट, नाउ एक टर्म यूज़ होती है SLO, व्हाट SLO वी आर गोइंग, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या माइंड में रखा गया, तो हमें कोई फिक्स आंसर नहीं मिल रहा होता. क्लियर? जेनेरिक्स पे बातें हैं, जनरल हैं. तो मैं क्या सवाल अपने आप से करता हूँ कि जी क्या मैं वो चीज़ मंडे को करता हूँ, हो सकता है मैं मंडे को कर रहा हूँ, ट्यूसडे को मैं भूल रहा हूँ, वेडनेसडे को मैं भूल रहा हूँ. क्लियर? या फिर एक और चीज़ आई, मैं जिसको हम कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या इंटरेक्टिव टीचिंग. उस पे जब सवाल मैं करूं कि जी कौन सी एक्टिविटी किस पर्पस के लिए, कितने टाइम के लिए, किस किस दिन, किस किस बच्चे से करवाई जा रही है, तो उसका भी कोई एग्जैक्ट आंसर यूजुअली नहीं मिल रहा होता. मैं सबकी बात नहीं कर रहा, यूजुअली कोई एक आंसर नहीं होता. या मैं अगर कहूँ जी कि वो इंटरेक्टिव टीचिंग है जिसमें बच्चों की इन्वॉल्वमेंट की गई है, तो वो इंटरेक्शन क्यों है, उसके पीछे पर्पस क्या है, क्या जस्ट बच्चों की इन्वॉल्वमेंट करवानी है, क्या वो सिर्फ इन्वॉल्वमेंट की हद तक है, या उस इन्वॉल्वमेंट का कोई टारगेट भी है, उस इन्वॉल्वमेंट का कोई ऑब्जेक्टिव भी है. कोई बच्चा अगर कोई स्पोर्ट्स साइकोलॉजिकल इशू को फेस कर रहा है, कोई बच्चा कोई किसी सोशल डिस्ट्रेस का शिकार है, कोई बच्चा उसका एकेडमिक बैकग्राउंड वीक है, कोई किसी का लिंग्वल इशू है, क्या मैं उसको टारगेट करके कर रहा हूँ, फिर तो ठीक है. लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो इसका कोई आंसर नहीं मिल पा रहा होता कि वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आ गई, लेकिन वो एक्टिविटीज़ के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है वो क्लियर नहीं है, या वो एक्टिविटी जनरेट कैसे की जाए वो क्लियर नहीं है, कि या वो एक्टिविटी सूटेबल भी है या नहीं, क्या बिफिटिंग है उस सब्जेक्ट के लिए या नहीं. क्लियर? क्योंकि मैं जो एक्टिविटी करवा रहा हूँ उससे क्या सारे या मैक्सिमम नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन को फ़ायदा, स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं, या वो कि ऐसा तो नहीं रह गया कि सिर्फ लर्निंग थ्रू फ़न हो गया, कि जिसमें फ़न ही फ़न रह गया, लर्निंग ख़त्म हो गई है, ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है. तो आज के हम इस सेशन में इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वील ट्राई टू गो फॉर सर्टन मैकेनिज्म विद फिक्सिटी, जिसमें certain people ask me that why are you making these things fixed, that where everybody can be there with his own style, clear, with his own strategy, with his own mechanism. But when we talk about own mechanism, own style, own methodology, clear, there is always another question, very important, clear, which above all for me is very important. कि अगर मैं बात करूं कि that this is my style, this is my strategy, this is my methodology, तो अगला क्वेश्चन एजुकेशन डिपार्टमेंट मुझसे पूछता है कि हु आर यू सम अथॉरिटी, क्लियर, आर यू विद सर्टन स्कॉलास्टिक्स, आर यू विद सर्टन एक्सेप्टेड इन्फ्लुएंस अराउंड यू और इन द एजुकेशन सर्कल्स और लिटरेरी सर्कल्स, कि क्या मैं वो अथॉरिटी रखता हूँ कि जिसमें मैं ये कह सकूँ कि जी मेरे ख़्याल में, मेरी मेथडोलॉजी में, मेरे मुताबिक ये काम ऐसा होना चाहिए.
क्लियर? क्यों? दैट नीड्स ऑथेंटिसिटी कि भाई हु चेक्ड माई मेथडोलॉजी। क्लियर? हु चेक से मुराद में ले रहा हूँ, क्या किसी एक्सपर्ट ने मेरी मेथडोलॉजी चेक की है? क्या किसी एक्सपर्ट ने मेरा मैकेनिज़्म, मेरी स्ट्रेटजीज़ को ऑब्ज़र्व किया है? क्या उस एक्सपर्ट ने मेरी मेथडोलॉजी को चेक करने के बाद, उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करने के बाद मुझे कोई ऑथेंटिसिटी का सर्टिफिकेट दिया है? क्या मैं सर्टिफाइड हूँ? तो यूजुअली वी डोंट गेट एन आंसर। अब इसमें डर किस चीज़ का है? मेरी मेथडोलॉजी, मेरी स्ट्रेटजी, मेरा तरीका, मेरे ख़्याल में, मेरे मुताबिक, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा हर्ज हो जाती है कि जब अगर अगला सवाल उठाया जाए कि भाई अगर मुझे जाके पता चले साल बाद, 6 महीने बाद कि मेरी मेथडोलॉजी गलत थी, तो वो 1 साल में वो बच्चे तो स्पॉइल हो गए। बच्चों की जो टारगेटेड स्किल्स जिन पे मैं काम करना चाह रहा था वो तो ख़राब हो गई हैं। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? उस गैप को कौन कवर करेगा फिर? अगर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मेरी मेथडोलॉजी साल बाद जाके गलत साबित हो जाती है, तो वो जो साल में नुकसान हो गया है उसका खुमियाजा कौन भुगतेगा? उस नुकसान को कौन पूरा करेगा? कैसे कवर करेगा? उसकी आसान एक मिसाल देता हूँ अपनी सराउंडिंग से जो नॉर्मली यूजुअली हो रहा है। दैट रिफरिंग टू दैट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, टीचर्स, they seem to be lamenting, they seem to be complaining all the time that whatever should have been done previously there till inter level had not been done by anybody. They complain कि उनका एक शिकवा होता है कि ये चीज़ ही इंटरमीडिएट तक बच्चे को ये चीज़ें हो जानी चाहिए थीं, जो वहाँ पे नहीं हुई, हमें आके कहाँ करवानी पड़ रही हैं? BS लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे। इंटरमीडिएट के टीचर के पास आप जाएँ तो दे ऑल्सो सीम टू बी कंप्लेनिंग कि जी ये जो बेसिक स्किल्स हैं, या ये जो एरियाज़ हैं, या ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर बता रहा हूँ कि ये स्किल्स या ये कॉन्सेप्ट्स, इनको तो जी मैट्रिक तक कवर हो जाना चाहिए था, बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जी वो इंटर के टीचर्स कह रहे होते हैं कि जी हमें ये बेसिक जो कॉन्सेप्शंस हैं, हमें ये जो बेसिक आइडियाज़ हैं, ये जो बेसिक स्किल्स हैं, हमें कॉलेज लेवल पे आके इम्प्रूव करवानी पड़ रही हैं, जो कि मैट्रिक तक हो जानी चाहिए थी। नाउ गोइंग बैक टू मैट्रिक टीचर, वो कंप्लेन करते हुए नज़र आ रहे होते हैं कि जी ये मिडिल ईयर्स तक हो जाना चाहिए था। मिडिल ईयर्स वाले कंप्लेन कर रहे होते हैं कि ये जी प्राइमरी लेवल तक हो जाना चाहिए था। वो कंप्लेन करते हुए नज़र आ रहे होते हैं कि जी ये मॉन्ट्री में कवर हो जानी चाहिए थी। एज शी मेंशन दैट यू आर बेसिकली डीलिंग विद ग्रेड 1 there, and that is considered to be the most important and the most difficult area, the most difficult level, age group or grade. Why? Because usually children skip certain things in pre-schooling, कि वो प्री स्कूलिंग के जो जनरली 3 साल कह लें या 4 साल, हमारे यहाँ मोस्टली 3 साल कह लें, कि वो जो 3 साल का एक्सटेंडेड टाइम स्पैन है, जिसमें बच्चे की अगर मैं कहूँ जी नाउन डेवलपमेंट से या नॉमेनक्लेचर डेवलपमेंट से लेके स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट तक का एक जर्नी जो है, उस बच्चे की मैं EPL की कह लूँ कि पर्सनल ग्रोथ से लेके इन्वायरमेंटल ग्रोथ तक या सोशबिलिटी तक या सोशल एडजस्टेबिलिटी तक का जो सफ़र है, वो क्या होता है? स्किप हुआ होता है, या वो चंक्स में हुआ होता है कि उसका पहला साल किसी एक प्री स्कूल में है, दूसरा साल किसी दूसरे प्री स्कूल में है। ले आप मैम अग्री करेंगी मेरी बात से, ऐसा ही होता नहीं होता? या मोस्टली ऐसा होता है कि पेरेंट्स बच्चे की एज लेवल को कवर करने के लिए वो साल ही स्किप करवा देते हैं। यानी अगर उनका वो प्ले ग्रुप का टाइम है तो उस एक यूजुअल कॉन्सेप्शन है कि प्ले ग्रुप मीन्स जस्ट टू प्ले, वो स्किप करवा देते हैं। डायरेक्ट वो नर्सरी में ले आएंगे बच्चे को, या डायरेक्ट प्रेप में ले आएंगे, या प्ले ग्रुप और नर्सरी दोनों स्किप करवा देते हैं, डायरेक्ट प्रेप में ले आते हैं, या प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप तीनों स्किप करवा देते हैं और डायरेक्ट कहाँ पे ले आते हैं? ग्रेड 1 में ले आते हैं। जिसकी वजह से ग्रेड 1 का टीचर आपको कंप्लेन करते हुए नजर आएगा कि जी ये चीज़ें तो बच्चे को प्री स्कूल में करनी चाहिए थी, मैं मुझे कहाँ के करवानी पड़ रही हैं? ग्रेड 1 में। सो मीन टू से दैट कि मैंने तो जो कुछ कर दिया, मेरी मेथडोलॉजी, मेरा मैकेनिज्म जो कुछ था, वो बर्डन शिफ्ट हो गया। मैंने सवाल उठाया था कि मेरी मेथडोलॉजी है, मेरी मेथडोलॉजी कहीं से सर्टिफाइड नहीं है, मेरी मेथडोलॉजी किसी एक्सपर्ट ने चेक नहीं की हुई, या मैंने अपनी ही मेथडोलॉजी पे खुद रिसर्च नहीं की। दूसरा तरीका भी होता है कि भाई कितने 100 बच्चों को पढ़ाया या कितने बच्चों को पढ़ाया, कितने साल तक उस प्रोसेस में रखा, उनको कितनी बार ऑब्जर्व किया गया, उसके आउटकम्स क्या मिले, क्या कोई रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, क्या कोई रिकॉर्डेड डाटा है, क्या कोई डाटा एनालिसिस का कोई सिस्टम है कि जी मेरी मेथडोलॉजी थी, मैंने इतने बच्चों पे इम्प्लीमेंट की, इतने मंथ या इतने साल इम्प्लीमेंट की और इतने इसके बाद मुझे ये रिजल्ट्स मिले। ठीक है, तो यूजुअली वो भी कहीं नहीं पाया जा रहा होता।
ठीक है, उसका भी आप किसी से प्रूफ मांग लें तो यूजुअली नहीं मिल रहा होता कि जी आपने, अगर आप मान लिया आपकी मेथडोलॉजी ठीक है, तो क्या आपके पास कोई ऐसा डाटा है, कोई रिपोर्ट है, कोई डाटा एनालिसिस सिस्टम है कि आपने कितने साल ये मेथडोलॉजी अडॉप्ट की, कितने बच्चों पे की, किस एज ग्रुप पे की, किस किस लेवल पे की, किस किस सब्जेक्ट में की, और उसके क्या रिजल्ट्स मिले आपको। ठीक है, तो वो हमें कहीं नहीं मिल रहा होता। और नुकसान फिर क्या हो रहा होता है, जो मैंने आपको बताया है कि यूनिवर्सिटी का यानी प्री स्कूल का बर्डन प्राइमरी पे शिफ्ट हो गया, प्राइमरी का मिडिल जीएस पे शिफ्ट हो रहा होता है, मिडिल जीएस का मैट्रिक पे इंटर पे होते होते वो कहाँ यूनिवर्सिटी तक चला जाता है। क्लियर, एंड दो स्किल्स आर ऑलवेज देयर। क्लियर, फेसिंग सर्टन नेग्लिजेंस, उसको मैं नेग्लिजेंस कहूँ, तो उसको मैं कहूँ वो इग्नोर्ड स्किल हो जाती हैं, या मैं उसको कहूँ कि वो स्किल्स पे काम ही नहीं हो रहा होता, डिलिबरेटली अननोइंगली कहो, जैसे भी कह लें। तो यानी ये दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सवाल हमने पहले अपने आप को क्लियर करवाना है कि क्या मेरी मेथडोलॉजी कुछ चेक्ड है या नहीं है। क्लियर, अगर चेक्ड है तो अपना सराउंडिंग सिस्टम अगर हम देख लें तो यूजुअली आई आस्क दिस क्वेश्चन कि 12 साल एक कंपलसरी इंग्लिश या कंपलसरी उर्दू 2 लैंग्वेजेस पढ़ने के बाद एक बच्चा अगर एक पेज भी खुद से ना लिख सके, उसकी क्रिएटिव स्किल, उसकी राइटिंग स्किल अगर इतनी डेवलप ना हो, तो देयर इज़ अ बिग ह्यूज क्वेश्चन मार्क। एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि अगर 12 साल इस्लामियात पढ़ने, कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ने के बाद भी अगर वो कह लें ह्यूमन सेंस, इस्लाम बेसिकली इज़ अ रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, अगर वो ह्यूमन सेंस डेवलप ना हो, क्लियर, अगर वो माइंड्स ह्यूमैनिटी बेस्ड ना हो, क्लियर, अगर 12 साल सोशल स्टडीज़ या पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ने के बाद भी अगर कूड़े के ढेर आपको सराउंडिंग में, माशरे में नज़र आएँ, तो इसका मतलब बच्चे की सिविक सेंस या बच्चे की सोशल सेंस डेवलप नहीं हुई, तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ गड़बड़ है कि वो मज़ामीन तो सारे हैं, वो सब्जेक्ट्स तो सारे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, मैं उसमें किसी किस्म का नॉट एट ऑल कोई डाउट नहीं है, फुल सिंसेरिटी के साथ पढ़ाए जा रहे हैं, क्लियर, विद क्लियर इंटेंशंस पढ़ाए जा रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है पे मेथडोलॉजी में, उस मैकेनिज़्म में क्या कोई सिस्टमैटिक अप्रोच है कि जिसको, और वो सिस्टमैटिक अप्रोच भी क्या कहीं सर्टिफाइड सिस्टमैटिक अप्रोच है, अथेंटिक सिस्टमैटिक अप्रोच है। तो इन सवालों के जवाब इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आज के हमारे सेशन में हमें ये जवाब मिल रहे हैं, यानी मेरे वील सी दैट जी। देन अनदर a huge question जी कि बिफोर मूविंग टूवर्ड्स I'll give you towards a real session कि मेथडोलॉजी है क्या, क्या होगी, क्या हम करना चाह रहे हैं, उससे पहले फिर एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि व्हाट प्रॉब्लम्स यूजुअली, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स ही, 2 मिनट्स आपके पास हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं कि वाइल टीचिंग, पढ़ाते हुए, चाहे आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, जूनियर लेवल पे कहें तो टीचर्स को समटाइम मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाने पड़ रहे होते हैं, तो वहाँ कोई ऐसी स्पेशलिटी हमारे यहाँ अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर सकी कि लैंग्वेज टीचर है तो वो प्योरली लैंग्वेज को ही देख रहा है, क्लियर, साइंटिफिक एप्टीट्यूड डेवलपर है तो वो साइंस को ही पढ़ा रहा है, या साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को डील कर रहा है, या सोशियोलॉजी का एक्सपर्ट है तो वो सोशल सेंस पे या सिविक सेंस डेवलपमेंट पे काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं होता तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाने पड़ रहे होते हैं। जिस तरह मैम ने कहा कि दैट शी इज़ डीलिंग विद ऑल द सब्जेक्ट्स एट अ टाइम, शी इज़ अ होम टीचर, तो होम टीचर्स को मोस्टली जो है वो अक्सर सब्जेक्ट्स देखने होते हैं। अब आपके पास 2 मिनट हैं कि अब प्रॉब्लम्स काइंडली ज़रा मेंशन कर दें, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस करते हैं यूजुअली, कि ताकि हम सेशन के एंड पे देखेंगे क्या हमारी मेथडोलॉजी, क्या हमारी स्ट्रैटेजी, क्या हमारा मैकेनिज्म उन सारे प्रॉब्लम्स को केटर करता है नहीं करता। ये आप कह लेंगे वी आर ट्राइंग टू स्पेक्यूलेट, कि हम स्पेक्यूलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सेशन हमारा आज का होगा उसके एंड पे इन सवालों के जवाब आपको मिले हैं या नहीं मिले, ये जो मसाइल आप फेस करते हैं इनका हल इस मेथडोलॉजी में है या नहीं है। आई एम अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज ऑफ माई टीचर्स फ्रॉम हुम आई लर्न, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये इन सारों सवालों के जवाब इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। आपने फैसला करना है एंड पे कि आपको मिलते हैं नहीं मिलते। यू गॉट 2 मिनट्स जी। जी इंग्लिश बच्चे पढ़ते भी ठीक है, लिखते भी ठीक है, राइटिंग भी बहुत प्यारी होती है, और उर्दू में उनको मुश्किल आती है देखना और पढ़ना दोनों। ठीक है, आपको क्या वजह क्या लगती है, क्यों अक्सर आजकल स्कूल्स में हो रहा है उर्दू बच्चों का बहुत वीक एरिया जा रहा है, इंग्लिश में इतनी वजह आपको क्या वजह लगती है, कोई सोची हो आपने, नहीं बड़ी क्या उर्दू ज़्यादा मुश्किल है इंग्लिश से? चलें जी, विल डिस्कस जी, आप पॉइंट्स नोट करते जा रहे हैं कि हम अपनी मेथडोलॉजी में देखेंगे क्या उर्दू का मसला भी हल होता है या नहीं होता, या क्यों हो रहा है। विल डिस्कस जी। कोई एनीथिंग एल्स मैम? जी मैम कह रही हैं कि जी रिटन एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम, यानी ज़ुबानी बोलने में बच्चे क्या होते हैं ठीक होते हैं, और ये तकरीबन
इफ़ यू आस्क मी 99.9% इशू ये चल रहा है हर लेवल पे, चाहे वो इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है, चाहे यूनिवर्सिटी का है, चाहे वो ग्रेड 1 का है, चाहे ग्रेड 5 का है, कि मोस्टली एक प्रॉब्लम आती है कि बच्चे ऑरल एक्सप्रेशंस में बहुत अच्छे हैं, रिटन एक्सप्रेशंस में वीक है। जिसको मैं ज़रा आसान कर दूँ, मतलब कि वो बच्चे नॉर्मली क्लास पार्टिसिपेशन में बड़े अच्छे होते हैं लेकिन उनके ग्रेड्स बड़े लो आ रहे होते हैं। फिर वही बात है कि जी हम इसमें देखेंगे क्या हमारी आज की इस मेथडोलॉजी में ये चीज़ कवर होती है या नहीं होती। जो आप अपने पास लिस्ट बना रहे हैं जी क्लियर, उसमें मैं अगर कुछ ऐड करता जाऊँ जी, बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन लेवल एक इशू होता है, कुछ बच्चे क्लास में कॉन्सेंट्रेट नहीं करते या नहीं कर पाते, ये कोई विलिंगली कोई डिलिबरेट एफर्ट नहीं होती क्लियर, ये एक एक्सरसाइज है जो टीचर को करवानी ही पड़ती है। कॉन्सेंट्रेशन लेवल बच्चे का टीचर को ही इन्हेंस करना पड़ता है। गॉट माई पॉइंट जी, कि फिर वो क्या है जी, बच्चे का रीडिंग किसी का इशू है, किसी का राइटिंग का इशू है, आपने नहीं बताया जी होमवर्क एक बहुत बड़ा इशू है। तकरीबन हर दूसरा टीचर ये कंप्लेन कर रहा होता है कि जी बच्चे होमवर्क नहीं करके आते, या पेरेंट्स के लिए एक इशू बना हुआ है कि जी होमवर्क क्या अगर हमने करवाना है तो स्कूल में क्या हो रहा है। लेकिन क्या या होमवर्क के लिए अगर पेरेंट्स बिजी हैं या इतने एजुकेटेड नहीं हैं तो उनको क्या ट्यूटर रखना पड़ेगा, एक जो ट्यूटर उनको होमवर्क करवाएगा। ये होमवर्क क्या भला है। फिर उसके साथ और ऐड करूँ बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं बच्चों के जी, बच्चों के यूनिफॉर्म के इश्यूज़ हैं जी, बच्चों के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं जी, बच्चों की सेटलमेंट के इश्यूज़ हैं जी, बच्चों के सोशल इश्यूज़ हैं जी। लेकिन ये सारे इश्यूज़ हमने देखने कि क्या आज के हमारे सेशन में कवर होंगे नहीं होंगे जी। उससे पहले एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि मैंने एक सवाल तो ये उठा लिया कि मेरी मेथडोलॉजी क्या है, जो मुझे खुद से ही जवाब मिल रहा होता है कि मेरी कोई नॉर्मली कोई फिक्स्ड, कोई एस्टिमेटेड, कोई चेक्ड, कोई सर्टिफाइड मेथडोलॉजी नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करती क्लियर। दूसरा मैंने सवाल क्या उठाया कि जी कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो बीइंग अ टीचर मैं फेस कर रहा हूँ या पेरेंट्स भी फेस कर रहे होते हैं घरों में, या वो बच्चे खुद भी। जरा मैंने सेशन के शुरू में कहा कि आज का ये सेशन सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं है बल्कि पेरेंट्स के लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी है। जो बड़े बच्चे हैं वो अपने मसले खुद हल कर सकते हैं इस मेथडोलॉजी के अकॉर्डिंगली। पेरेंट्स हैं वो घर में भी थोड़ी बहुत हल्की सी सपोर्ट से बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और टीचर्स को क्लासरूम के अंदर क्या फ़ायदा होगा तो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले एक अगला एक सवाल उठता है कि भाई हाउ डू दे लर्न, बच्चे कैसे सीखते हैं। नाउ वंस अगेन यू गॉट 1 मिनट। मैम के जवाब देने से पहले कुछ हल्का सा गुजारिश कर लूँ कि व्हेन वी टॉक अबाउट टीचिंग ना, व्हेन वी टॉक अबाउट आवर एजुकेशन सिस्टम, व्हेन वी टॉक अबाउट क्लास इन्वॉल्वमेंट, मोस्टली अनफॉर्चुनेटली द टीचर रिमेन द एक्टिव पार्ट देयर clear. The teacher is there with active involvement all the time. The teacher is there with the pressure. I'm not saying that teachers are doing it deliberately, with the pressure to complete the syllabus, clear, to achieve the given targets or SLOs or objective or whatever you call it that. Under that pressure, they all the time remain focused on what? Deliverance. Clear? They remain focused on what? Their own deliverance. How am I delivering? Clear? How am I teaching? How am I handling with certain skills? How am I working upon the children? Clear? Ignoring the fact that how do they learn? जी मैम। बच्चे को जो सीखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे उस पर ही सीखेंगे जो हम बोलते हैं। अगर कुछ पढ़ा रहे हैं तो खुद से वो याद नहीं करते जब तक हम खुद उनको मतलब साथ साथ उनके रिपीट ना करते जाएं। वो हमारे एक्शन से, हमारे बोलने के अंदाज से उनको सब याद हो जाता है, खुद से उनको नहीं हो सकता। मैम कह रही हैं कि जी मोस्टली जो कुछ हम करवाते हैं, यानी वही वाली बात, जो मेरी मेथडोलॉजी है, मेरा तरीकाकार है, उसी के अकॉर्डिंगली बच्चे चल रहे होते हैं। जी मैं अपना क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूँ, हाउ डू दे लर्न। जी वो कह रही हैं कि मेमोराइजेशन से, डिफरेंट तरीक़ों से, यानी कहने का मेरा मकसद जी कि व्हेन एवर आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन जी, आई एम नॉट एट ऑल टू जज समबडीज नॉलेज रिगार्डिंग दैट क्वेश्चन इज़ बेसिकली जस्ट टू थ्रो अ लाइन क्लियर, कि एक लाइन बिछानी होती है हमने कि भाई अगला पॉइंट क्या है जिस पे मैंने फोकस करना है जी। सो अनफॉर्चुनेटली कहने का मकसद जी कि मोस्टली टीचर्स मेरे साथ एग्री करते हैं कि हम इस चीज़ को इग्नोर ही कर देते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं। ठीक है, यानी बच्चों के सीखने का मैकेनिज़्म क्या है, हमारा मोस्टली फोकस क्या होता है, मेरा मेथड क्या है, मेरा तरीकाकार क्या है, मेरा मैकेनिज़्म क्या है। एज वी डिस्कस इन द लास्ट सेशन, हमने पहले भी एक सेशन में डिस्कस किया था कि टीचर इज़ देयर विद हिज ओन सर्कल। टीचर का अपना एक सर्कल होता है, अपना एक स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, अपना एक कोरोना होता है, अपना एक हाला है, अपना एक घेरा है। वो कोशिश कर रहा होता है बच्चे को, और बच्चे का अपना एक स्पेक्ट्रम होता है, बच्चे का अपना एक एरिया है, ठीक है, बच्चे का अपना एक हाला है जो उसमें एग्जिस्ट कर रहा होता है। मोस्टली मैं क्या गलत कोशिश क्या कर रहा हूँ कि मैं बच्चे को उसके एरिया, उसके हाला, उसके स्पेक्ट्रम से निकाल के अपने में लाना चाह रहा हूँ। देयर अकॉर्डिंग टू एजुकेशन दिस इज़ रॉन्ग।
एजुकेशन कहती है कि मैंने बच्चे को उसके स्पेक्ट्रम, उसके माइंडसेट, उसके एटीट्यूड से निकाल के अपने में नहीं लाना, उसी को उसके पैटर्न पे रख के खुद वहाँ शिफ्ट होना है। देन आई एम सपोज टू वर्क अपॉन सर्टन स्किल्स, देन आई एम सपोज टू वर्क अपॉन हिज माइंड, कि मैंने उसको उसके दायरे में, आसान ज़ुबान में यूँ कहूँ कि हर टीचर बच्चे को उसके दायरे से निकाल के अपने दायरे में लाना चाह रहा है। एजुकेशन कहती है कि टीचर को बच्चे के दायरे में जाके उसके माइंड पे काम करना है, उसकी स्किल्स पे काम करना है, उसकी पर्सनालिटी पे काम करना है, जो एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन उसी के दायरे में रहते हुए अब उसका दायरा है क्या, क्लियर, उसका माइंडसेट है क्या, वो कैसे सीखना चाहता है, कैसे सीखता है, या यूजुअली क्या ऑब्जर्वेशंस हैं कि बच्चे का लर्निंग मैकेनिज्म क्या है, लर्निंग उसका मोड क्या है, ठीक है, जो हम डिफाइन नहीं कर पाते। आज के सेशन में हम फिर ये बात देखेंगे कि क्या आज का ये सेशन इस सवाल का जवाब भी देता है नहीं देता, और इसी की बेस पे कि अनफॉर्चुनेटली जो नेक्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस करने लगा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली एवरीथिंग हैज़ बिकम साइंटिफिक जी, क्लियर, everything on the face of earth is there with certain scientific approach now, talking about agriculture, talking about sciences, talking about infrastructure, talking about development, talking about that biological sciences, talking about chemical sciences, talking about geological sciences, clear, even talking about many other aspects in society। ज़िंदगी की छोटी तरीन चीज़ से लेके बड़ी तक हर चीज़ में एक साइंटिफिक अप्रोच आ चुकी है। बट अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन जी इज स्टिल बेस्ड अपॉन व्हाट जनरल ऑब्जर्वेशंस, क्लियर, जनरल एक्सपेरिमेंटेशंस, एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन जी, अकॉर्डिंग टू एजुकेशन एक्सपेरिमेंटेशन इज नॉट एट ऑल अलाउड इन एजुकेशन जी, कि एजुकेशन में एक्सपीरियंशियल बेस्ड या एक्सपेरिमेंटल बेस्ड कोई भी चीज़ अलाउ नहीं की जा सकती। कि मैं उसको आसान ज़ुबान में ये कहूँ, मैं कहूँ जी मैं ये तजर्बा करने जा रहा हूँ बच्चों के ऊपर, तो एजुकेशन मेरे से सवाल करेगी कि ये तजर्बा करते हुए कहीं बच्चों की लाइफ बर्बाद ना हो जाए। वो बच्चों का 1 साल नहीं होता, जिस तरह मैंने आपको क्या कहा है कि वो बात का 1 साल की कमज़ोरी 10 साल ट्रांसफ़र होती रहती है। 1 साल का गैप जो है वो यूनिवर्सिटी तक का टीचर भुगत रहा होता है। जो ग्रेड 4 में किसी स्किल पे काम करना हो रहा होता है, वो बच्चा सफ़र करता है जाके यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को उसका वो लोड उठाना पड़ रहा होता है। क्लियर, वो बात 1 साल की नहीं है, ठीक है, बात वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट की नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट डैमेज कितना करेगा बात उस चीज़ की है। आमा क्लियर जी? तो इसको हमने करना है कि एजुकेशन इज़ नाउ देयर विद साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच मतलब क्या है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है क्या, या व्हाट इज़ द टारगेट, व्हाट इज़ द स्किल, व्हाट इज़ द लर्निंग आउटकम, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव। नाम आप कोई भी दें कि आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, क्यों अचीव करना चाह रहे हैं, व्हाट विल बी द मैकेनिज्म टू अचीव दैट, व्हाट विल बी द स्ट्रेटजीज टू अचीव दैट, इन व्हाट टाइम यू आर गोइंग टू अचीव दैट, adopting what strategy you are going to achieve that, whether that strategy is certified or not, checked or not। check से मुराद क्या, रिसर्च उनकी क्या होती है, एजुकेशन की क्या है, कितने बच्चे कितने डिफरेंट स्कूल से, कितने डिफरेंट गांव देहातों से, कितने डिफरेंट माहौल से कितने साल अंडर ऑब्जर्वेशन रखे गए, उनके ऊपर कौन सी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट की गई, उसके रिजल्ट्स क्या क्या आए। मीन टू से दैट ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ जी, वेदर इट्स सम साइकोलॉजिकल इशू। अगर मैं इग्नोर कर रहा हूँ बच्चे का, बच्चा डिप्रेस्ड है क्लास में, लेकिन सम टाइम छोटी सी मिसाल दूंगा, द चाइल्ड इज गेटिंग इरिटेटेड बाय सम अदर चाइल्ड इन द क्लासरूम एंड आई एम ट्राइंग टू टीच दैट चाइल्ड, आई एम जस्ट वेस्टिंग टाइम बोथ हिज एंड माइंड। कि वो बच्चा अभी तक उस मोड, उस मेंटल स्टेट में ही नहीं आया कि मैं जो काम उस पर करना चाह रहा हूँ। क्यों? ही इज गेटिंग इरिटेटेड बाय द अदर चाइल्ड। व्हाट अरेंजमेंट शुड आई गो फॉर, कि मैंने कौन सी ऐसी अरेंजमेंट करनी है कि उसको उस इरिक्ट स्टेट ऑफ माइंड से, उस वैक्स स्टेट ऑफ माइंड से निकाल के बाहर लाना है, ताकि मैं जो उस पर काम करना चाह रहा हूँ वो काम हो सके। मैं बच्चे की तरह, मैम ने कहा जी मैं रीडिंग स्किल, मैम ने कहा जी स्पेलिंग की प्रॉब्लम है, मैम ने कहा जी उर्दू की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बच्चे की स्किल पे काम करना चाह रहा हूँ। स्किल तो बाद में आएगी, पहले वो उसको उस मेंटल स्टेट से तो बाहर निकालूँ मैं ना। उसकी मेंटल स्टेट क्या है? शैग्रन, वैक्सेशन, इरिटेशन, वो चिड़चिड़ाहट का शिकार है, जिल्लाहट का शिकार है, किसी दूसरे बच्चे की वजह से इरिटेट हो रहा है वो। मैं उसको इरिटेशन से बाहर निकालूंगा तो उस स्किल पे काम करूंगा ना जो मैं काम करना चाह रहा हूँ। अमा क्लियर जी? तो हमने पहले इस चीज़ को क्लियर करना है कि वो क्वेश्चंस क्या क्या, मैं रिपीट कर देता हूँ कि दैट हाउ डू आई टीच, मेरी मेथडोलॉजी क्या है, फिर वो मेथडोलॉजी क्या सर्टिफाइड है या नहीं है, वो मेथडोलॉजी कोई ऑथेंटिसिटी के साथ है या नहीं है, फिर क्या हमने क्या कहा जी बच्चे कैसे सीख रहे होते हैं,
फिर हमने क्या कहा जी कि एजुकेशन एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसको हमने साइंटिफिक मानना पड़ेगा, हमें आज माने कल माने, हमने इसको साइंटिफिक बनाना है, फैक्चुअस बनाना है, हमने इसको फिक्स्ड बनाना है, इसको एग्जैक्ट बनाना है कि 40 मिनट में से 5 मिनट हम किस चीज़ को दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, कौन सा टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं। हमने जेनेरिक्स को छोड़ना पड़ेगा, हमें जनरल जो चीज़ें हम कह रहे हैं जी कि मैं क्लास में एंटर होकर ये करके आ जाता हूँ, क्या मैं आपसे पूछूँ जी उस करने से कितने बच्चों को फ़ायदा होगा, नहीं, हमें फिक्स करना पड़ेगा कि 30 बच्चे की क्लासरूम है तो मैं 30 के ऊपर आया वो काम कर रहा था, या उन 30 में से जिन 5 का वो वीक एरिया उनके ऊपर काम करना चाह रहा था, या उन 30 में से किन को उस चीज़ की ज़रूरत थी, किन को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, या नहीं थी तो फिर क्या उनका मैं टाइम वेस्ट कर रहा था। तो हमें फिक्सिटी की तरफ जाना पड़ेगा, साइंटिफिक अप्रोच की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें ईच एंड एवरी इंडिविजुअल चाइल्ड मस्ट बी गिवन अ प्रॉपर वेटेज इन माई मेथडोलॉजी कि 30 बच्चे हैं, मैं 30 के 30 को एट अ टाइम सेम रिक्वायरमेंट के साथ हैंडल नहीं कर सकता। हो सकता है 30 के 30 की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हों, टीचर तो एक है, मैं उनको कैसे कैटर करूंगा, विल डिस्कस इन दिस मेथडोलॉजी जी। अब आते हैं जी उस मेथडोलॉजी को शुरू करने से पहले सर्टन वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज जी, वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज। यूजुअली इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से समझे जा रहे होते हैं, टीचर एक एंटिटी, चाइल्ड एक एंटिटी, और तीसरा बड़ा एरिया जो उसकी बुक है या जो सिलेबस है या जो स्कूल की तरफ से पॉलिसी दी जाती है कि जी फर्स्ट टर्म के अंदर इतना कवर करना है या फर्स्ट मंथ के अंदर इतना कवर करना है, बच्चे की नोटबुक पे क्या लेके आना है। ये 2 3 4 एंटिटीज होती हैं, नो नॉट एट ऑल जी। ईच एंड एवरी थिंग क्लियर वट एवर एग्जिस्ट्स देयर इज देयर विद सर्टन इंपॉर्टेंस जी। उसमें से हर एक चीज़ की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। उसमें आप कहें कि जो रियल टूल है, द रियल ऑब्जेक्ट है, क्लियर कि मैं उसको ऑब्जेक्ट किस सेंस में कहना चाह रहा हूं, जिस पे काम करना है हमने, क्लियर जो रियल टारगेट है हमारा, दैट इज द चाइल्ड, दैट इज द स्टूडेंट, वो तो बच्चे है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं इसको कोई लेवल फिक्स नहीं कर रहा। इट कैन बी देयर ग्रेड 1, इट कैन बी देयर BS स्टूडेंट, इट कैन बी देयर MS स्टूडेंट, क्लियर वो असल एंटिटी तो वो है ना, बाकी जो कुछ भी है जी दैट इज देयर प्लेइंग अ सपोर्टिव रोल। अब उसको जरा देखें रियल में, रियलिटी में होता क्या है जी। टेकिंग स्टार्ट, और स्क्रीन पे आप देख सकते होंगे विद नंबर 1 टीचर जी। टीचर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जी, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या ट्रेनिंग्स हैं। यूजुअली आफ्टर completion of the degree जी, the teacher is directly there entering into the classroom जी, without being unfortunately with my apologies, that without being guided जी, without being trained, without being equipped with, without being given the practical tools of education जी, तो उससे फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी मिसाल ले लूँ, मैं कहूँ जी मैंने क्वालिफिकेशन कंप्लीट की, आई एम इनसाइड अ क्लासरूम। यूजुअली जो होता है, मुझे एक सब्जेक्ट पकड़ा दिया जाता है और क्या दिया जाता है कि जी ये सब्जेक्ट इस वीक में इतनी चीज़ें मैंने कवर करनी है, इस मंथ में मैंने इतनी कवर करनी है, और बच्चों की ये स्किल्स डेवलप करवानी। कैसे डेवलप करनी है, माई ब्रेन इज ऑलवेज देयर विद दीज रिक्वायरमेंट्स। शुड्स की बहुत बड़ी लिस्ट एक मुझे पकड़ा दी जाती है, बोथ फ्रॉम द पेरेंट्स एंड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, कि जी चाइल्ड शुड नो दिस, चाइल्ड शुड डेवलप दिस, चाइल्ड शुड बी वर्कड अपॉन विद दिस। हाउ, जिसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा होता यूजुअली। और यूजुअली जनरल सिस्टम की बात करें, कोई ऐसा फिक्स मैकेनिज्म नहीं है कि जिसमें वो टीचर जब तक, या मैकेनिज्म है भी कुछ एरियाज़, कुछ सेक्टर्स की बात करूं तो जहां पे आप वो BA या एजुकेशन रिलेटेड डिग्रीज भी हैं, तो थेरेटिकल बेस पे जहाँ पे असाइनमेंट फिल हो के एग्जामिनेशन पास हुए हैं, और वहाँ पे भी फिर वो स्पेसिफिकेशन नहीं है। वंस अगेन दैट इज डीलिंग विद जेनेरिक्स कि अगर वो एजुकेशन रिलेटेड डिग्रीज भी हैं तो उन डिग्रीज में कुछ सेपरेट करके मैं कहूँ जी कि ग्रेड 1 की लैंग्वेज टीचर को क्या करना चाहिए, ये सेपरेट नहीं बताया गया हुआ। ग्रेड 1 के सोशल स्टडीज़ के टीचर को सिविक सेंस कैसे डेवलप करनी है, कुछ सेपरेट करके कोई उसको लेसन प्लान नहीं दिया हुआ। क्लियर। अगर मैं कहूँ ग्रेड 10th के साइंस के टीचर ने किसी साइंटिफिक सब्जेक्ट को करना है तो उसको 1 पॉइंट एजेंडा दे दिया जाता है कि जी बोर्ड में मार्क्स कैसे लेने हैं। मार्क्स लेना इस चीज़ को कभी भी मना नहीं करता कि मार्क्स लेने के साथ साथ अगर कुछ और एरियाज हैं जिनमें उस बच्चे की स्किल्स प्रीवियसली इंप्रूव नहीं हुई तो क्या अभी भी टाइम है, की जा सकती हैं। लेकिन वो क्या होता है, 1 पॉइंट एजेंडा, बोर्ड मार्क्स लेने हैं जी। बोर्ड मार्क्स ले लिए टीचर ने बच्चे के,
लेकिन क्या वो बच्चा अपनी स्पोकन एक्सप्रेशन में अच्छा है? नो। रिटन एक्सप्रेशन में अच्छा है? नो। पर्सनालिटी उसकी ग्रूम्ड है? नो। क्या कॉन्फिडेंस उसका बिल्डअप हुआ है? नो। खाली मार्क्स लेके मैं उसको कहाँ लेके जाऊंगा उस बच्चे को? पॉइंट नंबर 1 कि जो टीचर सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी अराउंड दैट चाइल्ड, अराउंड दैट स्टूडेंट, वो चाहे किसी भी लेवल को पढ़ा रहा है तो उसका ट्रेनिंग स्टैंडर्ड क्या है? क्या मैं ट्रेनिंग स्टैंडर्ड ये मान लूं कि जी वो 10 साल से पढ़ा रहे हैं, 15 साल से पढ़ा रहे हैं? वो 10 साल, 15 साल, 20 साल से जो पढ़ा रहे हैं, 10, 15, 20 साल की पढ़ाई की ऑथेंटिसिटी या सर्टिफिकेशन किस चीज़ को मानूं मैं? अगर मैं जेनेरिक्स पे जाऊं जी तो क्या रिजल्ट्स को मान लूं? तो हमारे कितने बच्चे ऐसे हैं जो बोर्ड टॉप करते हैं लेकिन आगे मेडिकल में, इंजीनियरिंग में सिलेक्ट नहीं होते। बड़ी माजरत के साथ 15 साल से पढ़ा, मैं अपने आप को शामिल करके कहता हूं कि मैं अगर कहूं जी कि मैं 20 साल से काम कर रहा हूं तो क्या मेरे 20 साल के उस काम की ऑथेंटिसिटी कहां से मिलेगी? उसकी ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा कि मैं जो 20 साल से कर रहा हूं क्या वो गलत है या ठीक है? और उसका जवाब मैं आसान आपको दे देता हूं कि भाई अगर वो 12 साल कंपलसरी लैंग्वेज पढ़ रहा है बच्चा, तो कितने परसेंट है जो बोल रहे हैं, कितने परसेंट है जो लिख पा रहे हैं? मैम ने बात की उर्दू की, 12 साल कंपलसरी उर्दू रखी हुई है, कितने परसेंट इस काबिल हैं कि जो बैठ के 2-4 पैराग्राफ, 2-4 पेजेस किसी टॉपिक पे लिख सकें? हमने कहा जी लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है तो क्रिएटिविटी क्या कोई अलग ऐसी सेगमेंट है उसके लिए? मैं कोई अलग दुकान खोलूं, अलग सौदा खरीदूंगा उसके लिए? ये बेसिकली 2 सब्जेक्ट तो मेन टारगेट इनका स्किल्स पे काम करना होता है। कितने परसेंट बच्चे हैं जो एफएससी के बाद जिनका साइंटिफिक एप्टीट्यूड होता है कि दैट दे मूव टूवर्ड्स रिसर्च के बजाय मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा कितने परसेंट माइंड्स ऐसे हैं जिनका रिसर्चर्स वाला माइंड हो? कितने परसेंट ऐसे हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हो? कितने परसेंट ऐसे हैं जो मैनेजमेंट साइंसेस की, उनकी मैनेजरियल स्किल्स कहीं से आइडेंटिफाई हो चुकी हों और वो मैनेजमेंट साइंसेस के बारे में सोच रहे हो, सोशल साइंसेस के बारे में सोच रहे हो, पॉलिटिकल साइंसेस के बारे में सोच रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के बारे में सोच रहे हो? तो जनरली जो जवाब मेरे पास पेरेंट्स का आ रहा होता है, जो एक बीइंग अ हम्बल स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो पेरेंट्स मुझसे पूछ रहे होते हैं, वो यही सवाल उनका हो रहा होता है कि सर अगर आपका 20 साल के उस तजर्बे को ठीक मान लें तो 20 सालों में बच्चों की ये करंट सूरत हाल क्यों है? क्यों ऐसा करना पड़ रहा है कि मेजॉरिटी बच्चों को एफएससी के बाद अपनी लाइन ही बदलनी पड़ती है? या वो साइंसेस को छोड़ के मैनेजमेंट साइंसेस में चले जाते हैं, कॉमर्स में चले जाते हैं, अकाउंटेंसी में चले जाते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी में चले जाते हैं, लिटरेचर, अगर उन्हें साइकोलॉजी में ही जाना था, लिटरेचर में ही जाना था, फैशन डिज़ाइन में ही जाना था, बीबीए में, बीकॉम में, अकाउंटेंसी में ही जाना था, तो फिर उनको मैट्रिक के बाद ही उस लाइन में रख देना चाहिए था। आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट जी? तो यानी फिर क्या टीचर, सिंपली इन वन वर्ड जी, इज दैट टीचर इनफ ट्रेन्ड? मेजॉरिटी आंसर इज नो। कोई इसको माने ना माने, रिजल्ट्स आर देयर इन सोसाइटी, जो सोसाइटी में आम हमें नज़र आ रहे हैं कि हमारा आगे डिप्लॉयमेंट कितने परसेंट। हमारे एक सीनियर, मेरे टीचर भी, मैं उनको मानता हूँ, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम, वो ही यूज्ड टू से प्रोडक्ट, वेयर इज द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट कहाँ पे है, कि कितने, अगर हम साल का एनालिसिस निकालें, कितने हज़ार बच्चे या कितने लाख बच्चे एफएससी करके निकल रहे हैं। एफएससी इज इंटरमीडिएट ना, ब्रिज है ना बिटवीन स्कूलिंग एंड प्रोफेशनल स्टडीज। कितने परसेंट बच्चे इंटर करके निकल रहे हैं और उनमें से कितने परसेंट आगे जो है अपने एग्जैक्ट टारगेट्स पे डिप्लॉय हो रहे हैं? तो वो हमें मोर देन 1% भी आंसर नहीं मिल रहा होता, इवन इट इज लेस देन 1%, जिसका मतलब है कि हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 जी, आर टीचर्स ट्रेन्ड इनफ? द सिंपल आंसर इज देयर नो जी। कोई इस चीज को माने ना माने, द रियलिटी एग्जिस्ट देयर। नंबर 2 जी, स्टूडेंट, द चाइल्ड, द रियल टारगेट जी, उसका साथ एक लिख लीजिएगा जी, द चाइल्ड कॉन्टेक्स्ट। आपको साथ में एक हैंडआउट भी मिल जाएगा जिसको स्टूडेंट पर्सोना आप नाम दें, स्टूडेंट फाइल कहें आप। अब इनको सिस्टमैटिक तरीके से हम कन्वर्ट करते जाएंगे जी। मेरी सारों से रिक्वेस्ट होगी कि दैट व्हेन यू बिगिन अ ईयर, या इस वर्कशॉप के बाद भी अपने स्कूल्स में जा रहे हैं वापस, तो आपने यू गॉट मैक्सिमम 1 मंथ, 1 मंथ से ज़्यादा टाइम नहीं मिलना चाहिए। इफ़ यू आस्क मी, फ्रॉम माई सीनियर्स, फ्रॉम माई टीचर्स, आई लर्न दैट इट मस्ट बी 1 वीक। तो मैं उसको 1 मंथ कर रहा हूँ। विद इन 1 मंथ आपने ये फाइल अपनी कंप्लीट करनी होती है। ये स्टूडेंट कॉन्टेक्स्ट है क्या, मैं उस फाइल को कैसे बनाऊंगा? मैं क्लास में एंटर हो रहा हूं, किसी भी ग्रेड, मैं फिर रिपीट करके कह रहा हूं, वेदर इट इज प्री स्कूलिंग,
whether it is schooling, whether it is college, whether it is even university, even I am saying university, कि मैंने अपनी एक फाइल तैयार करनी है with child's context, students context. context से मुराद क्या है जी? उसका कौन कौन सी चीज़ें उसके context में आएंगी जी? नंबर 1 जी, पर्सनल context, पर्सनल उसकी हैबिट्स, लाइकिंग, डिसलाइकिंग. इंटरव्यूज आर ऑलवेज देयर जी, बट फॉर द अनफॉर्चुनेटली फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी जी, एट द टाइम ऑफ एडमिशन इंटरव्यू इज देयर. उस इंटरव्यू में ये चीज़ें कंपल्सरी वहाँ डिटेल होनी चाहिए, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, जो बच्चे से भी पता चल सकती हैं, उसके पेरेंट्स से भी पता चल सकती हैं. हैबिट्स, द थिंग्स दैट इंटाइस द चाइल्ड, द थिंग्स दैट इन्फीरिएट्स द चाइल्ड. पर्सनल आप कह लें जी, ज़ाती तौर पे जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप निकलवा सकते हैं टीचर मस्ट हैव. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने फिजिक्स पढ़ानी है, केमिस्ट्री पढ़ानी है, BS लेवल पे मैंने लिटरेचर पढ़ाना है, लिंग्विस्टिक्स पढ़ानी है, कुछ और चीज़ें, सारी चीज़ें बाकी बाद में आएंगी जी. पहली चीज़ मुझे बच्चे की इन्फॉर्मेशन है या नहीं है. मैं आसान मिसाल देता हूँ, डॉक्टर के पास अगर पेशेंट का हिस्ट्री नहीं होगी, इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, कैन द डॉक्टर रीच टू द रूट कॉज ऑफ द इशू? मैं रिपीट माई क्वेश्चन जी, कि अगर डॉक्टर को मरीज़ के बारे में पता ही नहीं है तो क्या वो रूट कॉज तक पहुंच सकता है? ये तो फिर हम वो वाला काम कर रहे हैं कि जो हम डॉक्टर के सामने मैं जाके बैठ जाऊं और मैं उसको कहूं जी मैं आपको अच्छा डॉक्टर तब मानूंगा कि आप खुद जज करें ना मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है. आई हैव टू टेल ना कि मुझे अगर कहीं पेन है, कोई प्रॉब्लम है, इशू है, कहाँ पे है. एम आई क्लियर जी? तो इसमें पहली चीज़ क्या होगी जी? पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट चाइल्ड, पर्सनल कॉन्टेक्स्ट. नंबर 2 जी, लिंगुअल कॉन्टेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. एट द मोमेंट जी आई एम टेकिंग इंटरमीडिएट क्लासेस समवेयर जी. 2 बच्चे वहाँ मेरे पास ऐसे हैं जिन 2 का मुझे फर्स्ट डे पता चल गया. ड्यूरिंग द क्लास आई नोटिस समथिंग क्लियर एंड मैंने इंक्वायर्ड. वो 2 बच्चे, उनका बेसिक इशू, दे इवन कांट अंडरस्टैंड उर्दू, दे आर बेसिकली पश्तो स्पीकर्स. एंड आई एम डीलिंग विद व्हाट लैंग्वेज देयर जी? इंग्लिश. अब मेरा फिर सिंपल सवाल क्या कि जिन बच्चों को उर्दू की नहीं समझ आ रही, अगर मैं इसको प्रॉब्लम समझूं तो मैं क्या समझूं कि जी इंग्लिश को नहीं, तो डायरेक्टली मुझे इन इंग्लिश पे ले आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, मेरा काम आसान हो गया. आपको क्या लग रहा था मैं ही कहना चाह रहा हूं कि मुश्किल हो गया? नहीं, मेरा काम क्या हो गया? आसान हो गया. कि मैं बजाय इसके उनको पहले पश्तो से किस पे लेके आऊँ? उर्दू पे. उर्दू से किस पे लेके जाऊँ? इंग्लिश पे. मैं डायरेक्ट उनको इंग्लिश पे क्यों ना ले आऊँ? एम आई क्लियर जी? आफ्टर 1 month हार्ड वर्क नाउ दे आर समवट ऑन ट्रैक जी. यानी इशू अगला क्या है? लिंगुअल इशू, एज आई डिस्कस विद यू जी, द इशू ऑफ दैट चाइल्ड इन grade 1. व्हाट लिंगुअल बैकग्राउंड इज देयर जी? फैमिली कॉन्टेक्स्ट जी और सोशल कॉन्टेक्स्ट जी. What social context is there ji? What family background is there ji? From with what sort of culture, what sort of norm that child is there? I must be well aware ji. Financial context ji, very important. If I'm arranging certain activity in my classroom ji, ignoring the fact that certain children won't be able to, or the parents of the certain children won't be able to afford that, I'm making it compulsory for everybody ji. I'm not actually trying to develop them, I'm creating problem for them. Am I clear ji? So I have to be very much careful regarding financial context ji. Academic context ji. If I'm having that child in first year, what had been there ji till matric? Are you getting my point? कि मैट्रिक तक उस बच्चे की एजुकेशन कहाँ से है, कौन कौन से एरियाज़ हैं जो उसके कमज़ोर रह गए हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं जो उसके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं. एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट आई मस्ट बी वेल अवेयर जी. जिस तरह मैम ने कहा grade 1 में आपके पास आया है तो आपके पास कंप्लीट हिस्ट्री होनी चाहिए, प्री स्कूलिंग उस बच्चे की कहाँ से हुई, प्रॉपर हुई भी या नहीं हुई. देखें हमने इसको एक ब्लॉक रख देते हैं कि नहीं जी आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट चाइल्ड, कि मैं उस बच्चे को एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा. नो समटाइम वी हैव टू एक्सेप्ट दैट. मैंने अपना प्लान ऐसा डबल कर देना है, डबल पेस पे रख देना है कि जो अगर उसका गैप आया बीच में, आई एम सपोज टू कवर इट नाउ. मैं किसी भी लेवल पे जाके अकॉर्डिंग टू एजुकेशन ये नहीं कह सकता कि दिस मस्ट हैव बीन डन देयर इन प्रीवियस क्लासेस. नो, इफ आई एम डीलिंग विद BS स्टूडेंट, इंटर तक कुछ चीजें होनी चाहिए थी तो मुझे BS में ही उनको बीच में कवर करना पड़ेगा. आई हैव टू मेक इट द पार्ट ऑफ माई प्लान. अगर इंटरमीडिएट पढ़ा रहा हूं मैं कभी ये गिला नहीं कर सकता मैट्रिक तक करना चाहिए था. गिला है लेकिन अब टाइम नहीं है. क्लियर? माई कंप्लेनिंग, माई लेमेंटिंग कांट सॉल्व द प्रॉब्लम. आई कांट टेक दैट चाइल्ड बैक टू दैट क्लास.
आई हैव टू मैनेज इट नाउ, कि मुझे अपनी मेथडोलॉजी में, अपने प्लान में, अपनी स्ट्रेटजीज में उस प्रीवियस चीज को ही हिस्सा बना लेना चाहिए इफ आई एम अ ट्रू टीचर, if I know about the true spirit of education. Sometime I took 7 sessions of masters. Sometime I had to go for certain things of metric level in masters classes. कि MA के स्टूडेंट्स को वो चीज़ें करवानी पड़ती हैं. I never refused, I never denied it. Clear? And it can be achieved, though it is difficult, but it can be achievable. मैं फिर रिपीट कर दूं जी आसान ज़ुबान में कि किसी भी लेवल पे कोई भी टीचर जाके ये गिला नहीं कर सकता कि जी ये चीज़ पिछली क्लास में होनी. गिला उसका है, लेकिन अब उसके गिला करने से वो कवर नहीं हो सकता. बेहतरीन तरीका क्या है, वो टीचर उसको अब इस लेवल पे ही पिछली चीज़ को भी कवर करेगा. ये उसकी अखलाकी जिम्मेदारी है, ये उसकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. करना है उसको. कैसे करना है जी? नार मेथडोलॉजी हम देखेंगे, उसको कहाँ स्पेस देनी है मैंने, लेकिन कवर करना है, हर सूरत में करना है. मैं ये इससे जान नहीं छुड़ा सकता कि जी ये वाली स्किल पिछली क्लास में होनी चाहिए थी, ये वाला कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में कवर होना चाहिए था. नो, नहीं हुआ तो मुझे अभी करना पड़ेगा जी. क्लियर? तो ये क्या था जी चाइल्ड का एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट, जो यूजुअली आपके पास कहाँ से आता है? आपके पास एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट जी फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट, जिसको यूजुअली फॉर्मेलिटी समझ लिया जाता है. फ्रॉम वेयर जी? प्लीज डू मैंशन academic context. How do you get academic context? From the mark sheet? No, not at all, though it is there. Clear? But generally from mark sheet you can't go for everything. बच्चे के पिछली क्लास के रिजल्ट कार्ड से आपको सब कुछ नहीं मिल सकता. वो क्या होता है आपका जी? एंट्रेंस टेस्ट. वो एंट्रेंस टेस्ट इतना वेल थॉट, वेल प्लान, वेल कंसिडर्ड हो, जिसमें वो सारे एरियाज यानी आपकी लैंग्वेजेस, आपके बेसिक साइंटिफिक कॉन्सेप्शंस, बच्चे का मेच्योरिटी लेवल, बच्चे की स्किल्स जज हो सके. गॉट इट जी? फिर जी बिहेवियर इश्यूज इनसाइड द क्लासरूम जी. एज आई टोल्ड यू, समटाइम टीचिंग इज नॉट द प्रॉब्लम, सब्जेक्ट मैटर इज नॉट द इशू, स्किल इज नॉट द इशू, द इशू इज देयर बिहेवियर, एप्टीट्यूड डेवलपमेंट. और इसका बेस्ट टूल जी साथ साथ मेंशन करती जाइएगा. बेस्ट टूल इसके लिए क्या होता है जी? योर सीटिंग प्लान. द चाइल्ड मस्ट बी देयर इन अ रोटेशन मोड ऑल द टाइम. जब बच्चा फिक्स सीट पे बैठता है, एक पॉइंट अर्ज करना चाह रहा हूँ जी, दैट इज कॉल्ड दैट इट डिफाइंस द पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड विद अ टाइप, फिक्स्ड पर्सनैलिटी. मैं आसान ज़ुबान में एक बात कहूँ, जो बच्चा अगर एक ही कुर्सी पे कुछ अरसा बैठा रहेगा, उसकी पर्सनैलिटी में फिक्सिटी आ जाती है, वैरायटी नहीं आती, उसकी सोशल एडजस्टेबिलिटी, उसकी सोशबिलिटी वीक होती जाती है. वो सिर्फ एक ही किस्म के बच्चे के साथ बैठ सकेगा, डिफरेंट बच्चे के साथ वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा. तो उसको रोटेट करना है हमने हर टाइम जी. और 99.9% बिहेवियरल इश्यूज़ जो क्लासरूम के अंदर, जिसको मैं डिसिप्लिन इश्यूज़ कह लूँ, बच्चों का लैक ऑफ कंसंट्रेशन कह लूँ, या शाय एटीट्यूड में कहूँ, हेजिटेंट एटीट्यूड कहूँ, बच्चे मुख्तलिफ हर तरह के माहौल में जाके जो एडजस्ट नहीं हो पा रहे होते, झिझक जाते हैं, उसको कवर करने के लिए क्या उनका सीटिंग प्लान चेंज होता रहा. यानी मंडे को बच्चा अगर फ्रंट पे बैठा है तो ट्यूसडे को मिड में जाए, वेडनेसडे को एंड में जाए, वो रोटेट होता रहे, मुख्तलिफ किस्म के बच्चों के साथ बैठे. वो एक तो इससे नंबर 1 नोट करते जाइएगा, आपको कॉन्सेंट्रेशन लेवल मैक्सिमम मिलेगा, आपको बिहेवियरल इश्यूज मिनिमाइज हो जाएंगे, डिसिप्लिन इश्यूज मिनिमाइज हो जाएंगे, और अबव ऑल बच्चे की टाइप पर्सनैलिटी नहीं होगी, फिक्स्ड पर्सनैलिटी नहीं होगी. फिक्स पर्सनैलिटी से क्या मुराद ले रहे होते हैं जी? जो हम नहीं कहते जी फलां बच्चे ज़रा सीरियस किस्म के हैं, फलां बच्चे जी जॉली टाइप के हैं. ये गलत है जी, ये कहना ही गलत है. बच्चे को हर तरह की सिचुएशन में, व्हेन द सिचुएशन इज जॉली, द चाइल्ड मस्ट बी इन अ जॉली मोड. व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स सीरियसनेस, द चाइल्ड मस्ट बी देयर विद सीरियस कंसंट्रेशन. इसको फिक्स नहीं किया जा सकता, ना करना चाहिए. क्यों? आगे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, हल्का सा मैं यहां कर दूं जी, कि दैट यू आर एक्चुअली बिल्डिंग दैट पर्सनैलिटी. आप उसको फिक्सिटी की तरफ लेके जा रहे हैं अभी से. लेट हिम लिव, लेट हिम हैव द वैरायटी, let him have the experience of multiple type of situations. कभी serious, कभी jolly, कभी humorous, कभी with full concentration, कभी with full enjoyment, कभी with zero enjoyment, कभी with speed, कभी with time limitations, कभी with liberty of time limitations. यानी कभी मैं एक्टिविटी ऐसी प्लान करूंगा, बच्चों को कहूंगा you got 2 minutes जी, I'm going to start countdown 10, 9, 8, 7. क्लियर? मैं उनको किस पे ला रहा हूं? टाइम लिमिटेशन. समटाइम आई विल गिव देम लिबर्टी, गो फॉर इट ऑन योर ओन.
Whether you take it 2 minutes, whether you take it 1 hour, whether you take it 1 day, whether you want 1 week, go for it on your own. मुझे उनको मल्टीपल सिचुएशंस में रखना है. क्यों? Having multiple situations, they are actually developing multiple mod. उनका मॉड मल्टीपल. मैं आसान तरीन ज़ुबान में समझाऊं जी. हमारे ज़माने में हमें ज़्यादा टेक्स्ट बुक नोट्स इन चीज़ों पर रखा जाता था. हम आज तक कोई भी चीज़ हमें कोई भी आगे समझा दे, एंड पे क्या कह रहे होते हैं हम, ये कहाँ लिखा है. यानी हमारी लॉजिकल आना है कि ये लॉजिकल जस्टिफिकेशन नहीं है, मैं इसको लॉजिकल सेटिस्फैक्शन कह सकता हूँ. क्लियर? ये लॉजिकल जस्टिफिकेशन नहीं है. मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इसको लॉजिकल सेटिस्फैक्शन कह सकता हूँ, लॉजिकल जस्टिफिकेशन नहीं है. हमने हर चीज़ की क्या बना ली, कहाँ लिखा हुआ है. ये किसी का बेहतरीन लेक्चर भी हो जाए, एमेंड पे क्या कह रहे होते हैं, सर नोट्स मिल जाएंगे. कि जब तक हम उसकी रीडिंग ना कर लें हमें सुकून. यानी टीचर का लेक्चर बहुत बेहतरीन है, वही चीज़ जब हमें रीडिंग में मिल रही होती है हम कहते हैं परफेक्ट चीज़, जो सर ने पढ़ाया ठीक पढ़ाया. जब तक यानी हमारा मॉड किस पे सेटल हुआ है, रीडिंग पे. Whenever we are getting something different, वही हमें चीज़ को वीडियो के थ्रू समझा दे, हम मानते ही नहीं. हमने कहा तो सर ने तो वीडियो दिखाई है, सर ने तो कुछ पढ़ाया नहीं है. हालांकि हो सकता है उस वीडियो के थ्रू पूरा लेक्चर, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, लेकिन हमारा मॉड किस पे फिक्स हुआ है, पढ़ाने पे और किस पे, रीडिंग पे. इज दैट क्लियर? सो टूल हमने कौन सा डिस्कस किया जी, सीटिंग अरेंजमेंट. और अपनी स्ट्रेटजीज में हम क्या रखेंगे, वैरायटी. असेसमेंट्स जी एक और टूल है जिसको हमने क्या रूटीन बना ली. अनफॉर्चुनेटली बहुत माजरत के साथ जी, बहुत माजरत के साथ, ख़ास तौर पे पेरेंट्स से जी, हम्बल रिक्वेस्ट जी, कि ग्रेड 1 का चाइल्ड है, उसके फेसबुक के ऊपर क्या पोस्ट लगाई जा रही होती है, दैट माई चाइल्ड टॉप द स्कूल इन ग्रेड 1. वेरी स्ट्रेंज जी, वेरी स्ट्रेंज. पीपल लाफ एट अस, पीपल मेक फन ऑफ अस. कि मेरे बच्चे ने, इवन एक मौसूफ की मैंने प्री स्कूल की भी फेसबुक के ऊपर पोस्ट देखी है कि मोंटसरी में मेरे बच्चे ने क्या किया है, स्कूल टॉप किया. हालांकि वो ही हिमसेल्फ एज अ टीचर, कि मोंटसरी को स्कूल नहीं होता, इट्स अ प्री स्कूल. क्लियर? यानी असेसमेंट क्या है जी, असेसमेंट इज बेसिकली द असेसमेंट ऑफ टीचर एंड असेसमेंट ऑफ सिस्टम. रिस्पेक्टेड मैम, इसको कहीं लिख लीजिएगा काइंडली. असेसमेंट बेसिकली किसकी होती है जी, टीचर की और सिस्टम की. बच्चे की असेसमेंट बाद में आएगी. मैंने क्या डिलीवर किया, मेरा सिस्टम, मेरी पॉलिसी, मेरा करिकुलम, मेरा प्लान, मेरी स्ट्रैटेजी इफेक्टिव है नहीं है, उसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या आउटकम है, हाउ विल आई जज इट. एक टूल उसमें से क्या है, असेसमेंट्स. और हम बच्चे की दीनों दुनिया, दीनों आखिरत का फैसला कर रहे हैं उसकी असेसमेंट पे. व्हेन द चाइल्ड फेल्स जी, अकॉर्डिंग टू माई टीचर, वेरी मच authenticity I am proclaiming this. See, the failure of the child is basically the failure of system. जो डिग्री हम करते क्या, उस बच्चे को पकड़ा देते हैं कि यू गॉट फेल्ड. ये मिसाल वही वाली है कि हम वो हॉस्पिटल खोल रहे हैं, वो क्लिनिक खोल रहे हैं जिसमें मरीज़ कोई ना आए, सब क्या शिफा याफ्ता लोग आएँ, सेहतयाब लोग आएँ. मुफ्त मशवरा नहीं होगा, मशवरा फीस इतनी होगी. The child is there, always there with certain problem to learn about, with certain issue to be resolved. हाँ, एक आप टूल कह लें कि बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल मैंने चेक करना है, बच्चे की परफॉर्मेंस चेक करनी है, बच्चे की इंप्रूवमेंट उसमें आ रही है नहीं आ रही है, इस हद तक. अदरवाइज असेसमेंट इज बेसिकली द असेसमेंट ऑफ सिस्टम, असेसमेंट ऑफ पॉलिसी, असेसमेंट ऑफ मैकेनिज्म. मैं इसको और आसान कर लूँ. एक बच्चा साल पूरा मेरे पास आता रहा है जी, साल पूरा डेली 4-5 घंटे मेरे पास गुजारता रहा है, और साल के एंड पे मैं उसको एक सर्टिफिकेट पकड़वा रहा हूँ कि वो फेल हो गया. इसका मतलब फिर साल पूरा मैं क्या करता रहा हूँ? क्या वो मेरे पास साल पूरा फेल होने के लिए आया था? मेरे से मुराद क्या है, मेरा सिस्टम, मेरी स्ट्रैटेजीज, मेरा करिकुलम, मेरी मेथडोलॉजी, मेरा मैकेनिज्म, मेरा प्लान, मेरी टीचिंग, मेरा क्लासरूम एनवायरनमेंट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी? यानी मैं साल के एंड पे क्या डिग्री उसको देना चाह रहा हूँ कि दैट आई एम अनएबल टू डू एनीथिंग विद दैट चाइल्ड. सो असेसमेंट, रिमेंबर जी, दो इट इज़ देयर टू असेस द चाइल्ड. मैं उस फैक्ट से इनकार नहीं कर रहा कि बच्चे को भी हम असेस कर रहे होते हैं, सिर्फ किस हद तक कि आया जहाँ से उसने, हमने पहले क्या डिस्कस किया था, स्टूडेंट फाइल. मैंने स्टूडेंट फाइल जब बनाई थी तो मैंने उसमें बच्चे के कुछ प्रॉब्लम्स लिखे नहीं लिखे, क्या उसमें क्या क्या मैंने एरियाज पकड़े थे. बच्चे का क्या पर्सनल कॉन्टेक्स्ट क्या है, सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट क्या है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्लियर फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो सारी मैंने एक फाइल बनाई थी. उसमें मैंने क्या कहा था कि एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट कैसे चेक होगा, एंट्रेंस एग्जाम से.
उस एंट्रेंस एग्जाम में मैंने कुछ एरियाज रखे थे कि ये एरियाज बच्चे के वीक हैं और ये एरियाज बच्चे के क्या हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। अब साल बाद, 6 महीने बाद, टर्म असेसमेंट के बाद मैं एनालिसिस कर रहा हूं कि मैं बच्चे को लेके कहां से चला था। मैंने क्या कहा था, वो आपकी फाइल में कितने अरसे में तैयार हो जानी चाहिए, विद इन 1 मंथ। इसका मतलब है दोबारा उसका एनालिसिस या कंपैरिजन कब होगा, आफ्टर 1 मंथ। यानी पहले वो मंथली बेस पे बनी, दोबारा उसका रीएडजस्टमेंट, रीएनालिसिस, रीडिस्कशन उसके ऊपर कब होनी चाहिए, विद इन 1 मंथ। कि एक मंथ पहले बच्चा यहां खड़ा था, यानी उसकी रिटन एक्सप्रेशन, उसकी राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, फ्लांस स्किल, कंसंट्रेशन लेवल, उसका एटीट्यूड, बिहेवियर, यूनिफॉर्म, डिसिप्लिन, कोई इशू जो मैंने निकाला था। 1 मंथ बाद मैं फिर उसका एनालिसिस करूंगा। मैंने टारगेट सेट कर लिया, 1 मंथ बाद मैं देखूंगा क्या उसमें इंप्रूवमेंट आई है या नहीं आई है। असेसमेंट इज दिस फॉर दिस पर्पस, कि फिर अगर 1 मंथ बाद मैं देखूंगा क्या मेरी स्ट्रेटेजी तो कहीं गलत नहीं थी, मेरा प्लान तो कहीं गलत नहीं था, या कहीं ऐसा तो नहीं था कि बच्चे की प्रॉब्लम कुछ और थी, मैं उसके ऊपर मैं मिसाल दूं, जनरली जो होता है बच्चे की प्रॉब्लम, एज आई टोल्ड यू, बच्चे की प्रॉब्लम क्या है जी, कंसंट्रेशन लेवल। मैं फोकस सारा किस पे कर रहा हूं, उस बच्चे की राइटिंग स्किल के ऊपर। बच्चे का इशू, मैम ने जिस तरह कहा जी स्पेलिंग, स्पेलिंग इज सिंपली जी, स्पेलिंग डिपिक्ट व्हाट जी, वीकनेस ऑफ कंसंट्रेशन लेवल इन क्लासरूम। इन व्हाट, क्लासरूम। क्लासरूम में सिलेबिक टीचिंग होती है छोटे बच्चों की जी, बड़े ने खुद सीखने हैं तो स्पेलिंग कैसे इंप्रूव करने, सिलेबिक है जी, जिसको हम कारी साहब कहते थे अल हम दू। क्लियर, 3 हिजे हो गए। इंग्लिश में भी क्या होते हैं, केमिस्ट्री। क्लियर, 3 हिजे हो गए। व्हेन वी ब्रेक अ वर्ड इनटू 3 पार्ट्स, सिलेबल्स में तोड़ा हमने उसको, किसी वर्ड के 2 होते हैं, किसी के 3 होते हैं। इंग्लिश में मोस्टली क्या होते हैं, 3 और 4 कि सिलेबिक। और वो जो सिलेबिक रीडिंग है, क्या वो उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली हुई है या नहीं हुई है, या जब हुई है कहीं जनरली रीडिंग तो नहीं हुई कि वो बच्चा उस वक्त सोया हुआ था। आज गेटिंग अ पॉइंट जी। यानी इश्यूज का क्या था, कंसंट्रेशन लेवल। मैं क्या समझ रहा हूं, बच्चा किस में कमजोर है, स्पेलिंग में, और मैं उसको घर में जाकर क्या कह रहा हूं, रटे मार क्या करो जी, स्पेलिंग के। यानी इशू स्पेलिंग का नहीं था, इशू किस चीज का था, कंसंट्रेशन लेवल का। इशू किस चीज का है, बच्चे की कॉम्प्रीहेंशन स्किल का। कॉम्प्रीहेंशन ठीक हो नहीं रही है, मैं बच्चे की क्या कह रहा हूं जी, उसकी रिप्रोडक्शन स्किल, यानी एग्जाम में परफॉर्मेंस उसकी 0 हो रही है। कॉम्प्रीहेंशन को पहले तगड़ा करूंगा तो एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली तगड़ा हो जाएगा ना। मैं क्या समझ रहा हूं, बच्चे की राइटिंग स्किल ठीक नहीं है। इशू हालांकि असल में क्या है, उसका राइटिंग स्किल ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन स्किल कमजोर है, कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी वीक है। मैंने उसको टारगेट करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी। असेसमेंट का पर्पस समझ रहे हैं, और अब इंटरनेशनली डिफाइन कर दिया गया है जी कि फॉर चिल्ड्रन स्पेसिफिकली एट लोअर लेवल, एलिमेंट्री प्राइमरी लेवल, क्लियर, असेसमेंट इज देयर फॉर द सेक ऑफ इनकरेजमेंट। मैं नहीं कह रहा, ये आपकी एजुकेशनिस्ट दुनिया कह रही है, हु एम आई, मेरी क्या हैसियत है, कि फॉर देम असेसमेंट इज फॉर द सेक ऑफ इनकरेजमेंट, कि उनसे वो चीज पूछी जाए जो आपको पता हो कि उनको आती होगी। क्यों, व्हेन दे रिमेन इन अ सर्टेन सेटअप, एक वो सिस्टम में रहते हैं, उसके बाद उनके सामने एक असेसमेंट आती है। वो जितना आप, एक ह्यूमन साइकी है, आप जनरल अपना याद कीजिएगा, जो प्रॉब्लम खास तौर पे मैथ का या जो कोई इशू आपसे सॉल्व होता जा रहा हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता नहीं बढ़ता जाता, और जहां आप स्टक होते थे, इरिटेट होते नहीं होते, बंदे का दिल करता मैं सब्जेक्ट कोई पढ़ना छोड़ दूं। द सेम हैपन्स देयर विद अ चाइल्ड। क्या हम असेसमेंट हमने ऐसी रखनी होती है फॉर द सेक ऑफ व्हाट, इनकरेजमेंट। am I clear? It is not there for that sort of strange sort of competition ji, that my child stood what she first in that grade or my child stood second in that grade. The world is moving beyond certain limitations, and we people are there busy with stupid type of competitions. Competition must be there in what she skills, competition must be there in grooming, competition must be there in system, in policy. बच्चों में कंपटीशन नहीं लाना होता हमने, बच्चों में मोटिवेशन लानी होती है, और या कंपटीशन भी लाना होता है ना पॉजिटिव सेंस, नंबरों की दौड़ में नहीं। नेक्स्ट जी, अदर स्टूडेंट्स जी, कि मैंने जो स्टूडेंट पर्सोना फाइल बनाई है, मेरे पास क्लासरूम के अंदर कितने 30 स्टूडेंट्स हैं एवरेज। मैम ऐसे ही होता है ना, उन 30 में से कौन से किस कैलिबर, किस बैकग्राउंड, किस कॉन्टेक्स्ट के साथ आए हैं मेरे पास। डू आई हैव सर्टेन कैटेगराइजेशन ऑफ नॉट, डू मेंशन इट समवेयर जी, कैटेगराइज द स्टूडेंट्स जी, विल गो फॉर द कैटेगरीज for my personal record, not for announcement. I'll not announce these categories. Then the activities, what activity is there, with what objective, with what purpose, कौन सी एक्टिविटी मैं करवाना चाह रहा हूँ, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, who will manage it जी, at what time,
कौन सी एक्टिविटी है, किस टाइम होनी है, कौन करवाएगा, आया टीचर करवाएगा या बच्चे। इसको माइंड ना कीजिएगा सॉरी जी, कि मोस्टली एक्टिविटीज़ में मुझे टीचर ही इन्वॉल्व नज़र आ रहे होते हैं। यानी एक्टिविटी प्लान किसके लिए की गई, बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे वो एक्टिविटी कर नहीं रहे होते, ज़बरदस्ती करवाए जा रहे होते हैं। कौन करवा रहा होता है, टीचर। प्लांटेशन एक्टिविटी इस देयर जी, ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चों में एक सेंस देना रिगार्डिंग व्हाट ची दिस इशू ग्लोबल वार्मिंग, क्लियर, और टू डेवलप दैट सेंस दैट लव फॉर नेचर। वो नहीं है माली बाबा ने पौधा लगा दिया, बच्चे को सिर्फ साथ खड़ा कर दिया जाता है तस्वीर के लिए जी, मंजर कशी हो जाए उसकी। विद ड्यू रिस्पेक्ट जी, मैम भी ऐसी करती हैं अक्सर, क्योंकि वो बच्चे के सामने नज़र आ रहा होता है, उसके हाथों में मट्टी नहीं होती, कपड़ों में मट्टी नहीं होती, या प्रैक्टिकली वो कहीं नज़र नहीं आ रहा होता कि वो ज़मीन खोद रहा हो या मट्टी निकाल रहा हो कुछ, तो ऑब्वियसली बच्चा है, उसको हेल्प की ज़रूरत है, या मट्टी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे होते, हाथ नीट एंड क्लीन होते हैं उसके। तस्वीर में उसने सिर्फ हाथ साथ जोड़ा होता है उस पौधे के साथ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी, कि कौन सी एक्टिविटी है, पर्पस क्या है, बच्चों से क्यों करवा रहे हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बहुत ज़्यादा रट हुई, उससे प्रॉब्लम क्या होगी, एक्टिविटीज़ ही रह गई, लर्निंग क्या हो गई, उड़ गई है। एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं, लर्निंग कहीं भी नज़र नहीं आती। या सॉरी टू से मादरत के साथ, उन्हीं बच्चों में 30 बच्चों की एक्टिविटी हुई, उन्हीं में से 30 को खड़ा करके पूछ लें कि आपकी एक्टिविटी क्या हुई है, मेजॉरिटी ऑफ देम डोंट नो, या उनको सिर्फ नाम की हद तक पता होता है, या बाकी पूछें ये एक्टिविटी आपने बेटा क्यों हुई है, आपने क्या इससे, व्हाट डू यू थिंक दैट आफ्टर दिस एक्टिविटी, व्हाट शुड इट बी देयर। आप जनरलाइज से कुछ क्वेश्चन करें, मेजॉरिटी, मैं हर लेवल पे कह रहा हूँ, इवन कॉलेज स्टूडेंट्स आई हैव ऑब्जर्व्ड, BS स्टूडेंट्स आई हैव ऑब्जर्व्ड, फलां गाला हो रहा है जी, फलां फेस्टिवल हो रहा है जी, फलां इवेंट हो रहा है जी, फलां अब नया वर्ड आया है, फेस्टा हो रहा है, फेस्ट हो रहा है, कार्निवल हो रहा है। तो उनसे अगर पूछा जाए जी व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कार्निवल, दिस फेस्ट, बस हो रहा है सर, एंजॉयमेंट है। क्यों हो रहा है, वी डोंट नो। पर्पस क्या है इसका, वी डोंट नो। आपने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया, बस हम देख रहे हैं सर। हालांकि देखना भी इटसेल्फ एक पार्टिसिपेशन ही है। स्पेक्टेटर्स आर ऑल्सो पार्टिसिपेटर्स। या कुछ छुट्टी करके घर बैठे होते हैं उस दिन, उन बच्चों से पूछा जाए बेटा आप क्यों नहीं आए, सर वो बस पढ़ाई नहीं थी, कोई एक्टिविटी हो रही थी, हम इसलिए नहीं है। मतलब इसका मतलब वो एक्टिविटी क्या थी, नॉनसेंस एक्टिविटी थी कोई। आई एम स्पेसिफिकली रिफरिंग टू व्हाट शी BS स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, दे स्किप दैट डे। वो नहीं चाहते, क्यों नहीं गए बेटा आप, सर वो बस वो कुछ था, कुछ कार्निवल से हो रहा था, हमने पढ़ाई नहीं है तो हमने कहा जाके क्या करेंगे, मूवी डे था, कुछ और था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, एन अनाउंसमेंट ऑफ दैट। अनाउंसमेंट इज नॉट देयर विद दैट क्लैरिटी। उस क्लैरिटी के साथ अनाउंसमेंट नहीं होती। मोटिवेशन इज नॉट देयर, अ प्रॉपर मैकेनिज्म इज नॉट देयर। एक्टिविटी क्या है, कौन करवाएगा, अनाउंस कौन करेगा, मोटिवेट कौन करेगा, इन्वॉल्व कौन करेगा। या तो मेजॉरिटी क्या होते हैं, टीचर्स, या अगली एक और प्रॉब्लम छोटी सी काइंडली मेंशन कर दीजिएगा जी, दैट सर्टेन नंबर ऑफ फिक्स्ड स्टूडेंट्स आर ऑलवेज देयर। कुछ फिक्स्ड बच्चे हैं, बस कोई एक्टिविटी है उन्होंने अनाउंस करनी है, उन्होंने अरेंज करनी है, वही फ्रंट पे नजर आ रहे होते हैं। क्या हर बच्चे का ये हक नहीं है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करे। मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ूंगा कि जी कुछ बच्चों का क्या कैलिबर है, कुछ बच्चों का, यानी हु विल डिसाइड कि किस बच्चे का, नहीं, कैलिबर होता नहीं है जी, कैलिबर डेवलप किया जाता है, मेक इट वेरी क्लियर। इंटरेस्ट होता नहीं है, काइंडली मेंशन दीज पॉइंट्स। इंटरेस्ट होता नहीं है, इंटरेस्ट डेवलप किया जाता है, कैलिबर होता नहीं है। इट इज़ नॉट सम इनबॉर्न। इसके बारे में कुछ थीरीज हैं जी, कट बर्थ थ्योरी, कि आया ये जो नॉलेज का, लर्निंग का, कैलिबर का, स्किल का, टैलेंट की मशीन अल्लाह ने अंदर रख दी है। डाटा चाहिए होता है। एक एजुकेशनिस्ट की लाइन ये है जी जो ये डिस्कस करते हैं कि ये मशीन अल्लाह ने रख दी है, डाटा सिर्फ चाहिए होता है। दूसरे कहते हैं नहीं जी, मशीन भी नहीं रखी, मशीन भी डेवलप होती है और डाटा भी। मैं आसान मिसाल मशीन में क्या कह रहा हूँ, यानी मैनेजेरियल स्किल्स हैं। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है एजुकेशनिस्ट का जो ये कहता है जी मैनेजेरियल स्किल का माइंड में मशीन अल्लाह ने रख दी, डाटा वैसा मिलेगा, वो मैनेजेरियल स्किल्स खुद ब खुद पॉलिश हो जाते हैं। दूसरे कहते हैं नहीं जी, मशीन भी नहीं रखी जी, डाटा भी नहीं रखा, मशीन भी नहीं रखी,
मशीन भी डेवलप की जा सकती है, मैकेनिज़्म भी डेवलप किया जा सकता है, टैलेंट की बात करें, किसी स्किल की बात करें, इवन वो भी डेवलप की जा सकती है। इंटरेस्ट है, कोई केजी बच्चे का इंटरेस्ट होता नहीं है, इंटरेस्ट डेवलप किया जाता है। क्लियर? अब उसका तरीक़ाकार क्या है जी? दीज एक्टिविटीज़। अब उस एक्टिविटीज़ की लिस्ट गिनता जाऊँ, क्या क्या है जी? असम्बली, क्लासरूम, स्पेशल डेज, स्पेशल इवेंट्स, करिकुलर, को करिकुलर, पूरे साल के कैलेंडर में जो कुछ आता है जी। उससे अगले स्टेप पे आप चले जाएं जी, एक्टिविटीज़ मस्ट बी प्लान्ड बाय हूम, लिखते जाइएगा जी, स्टूडेंट्स, अरेंज्ड बाय हूम, स्टूडेंट्स, दो विद द गाइडेंस ऑफ टीचर्स, विद द गाइडेंस ऑफ सीनियर्स, विद द गाइडेंस ऑफ सिस्टम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी? लेकिन गाइडेंस फैक्टर को मैं इग्नोर नहीं कर रहा, लेकिन करेगा कौन? स्टूडेंट्स। मैं फिर रिपीट करके कह रहा हूं, प्लान्ड बाय द स्टूडेंट्स, एग्जीक्यूटेड बाय द स्टूडेंट्स। अब इसमें एक सवाल मेरे ऊपर आता है कि सर एक एक्टिविटी है, बच्चों ने गलत प्लान कर ली, तो वह बड़े मौजूद है ना, उस प्लान को ठीक कर देंगे। एक एक्टिविटी जी, उसकी एग्जीक्यूशन में बच्चों से प्रॉब्लम होगी, तो देन व्हाट? कौन सी ज़मीन आसमान ऊपर नीचे हो जाएगा? मिनिमम उनका नॉलेज क्या हो जाएगा, उनसे एग्जीक्यूशन में क्या हुई, गड़बड़ हुई, वो नेक्स्ट टाइम उसको ठीक कर लेंगे। और अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जी, एवरीबडी, इसको काइंडली की मेंशन कीजिएगा, एवरीबडी जी। मैं मिसाल देता हूँ छोटी सी। देखें, जो पूरा साल के इवेंट्स में, साल की रूटीन में जो एक्टिविटीज़ आ रही हैं, उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि हर दफ़ा वही बच्चा तिलावत करे जो सबसे अच्छी तिलावत करता है, वो बच्चा नात पढ़े जो सबसे अच्छी नात। ठीक है, साल के एंड में कोई आपका कोई प्राइम टाइम है, कुछ और है, तो ठीक है, आप यू मस्ट गो फॉर द बेस्ट। जो पूरे साल के दौरान जितनों ने पार्टिसिपेट किया, उनमें से जो बेस्ट निकले, साल के एंड पे कहीं आप उनके लिए कोई प्राइजेस, कोई मोटिवेशन, कोई इवेंट रख दें ना। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? लेकिन साल के दौरान में ये कहाँ लिखा हुआ है कि साल के दौरान में भी हर दफ़ा मैं उसी बच्चे को लेके आऊँ? नहीं, आई मस्ट बी देयर विद मल्टीपल। साल के दौरान में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसमें हर बच्चा इन्वॉल्व हो किसी ना किसी चीज़ में। मैं फिर क्या कह रहा हूँ, उसकी प्लानिंग में, उसकी अरेंजमेंट में, उसकी एग्जीक्यूशन में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी? और मैम अग्री करेंगे आप सारे लोग, कौन करता है मोस्टली प्लान जी? टीचर्स। इवन एग्जीक्यूट भी कौन करता है जी? टीचर्स। सिर्फ किस लिए कि एक इंप्रेशन अच्छा जाए जी, एक्टिविटी क्या हुई है, उस इंप्रेशन के चक्कर में वी डोंट लेट द स्टूडेंट्स प्ले इन्वॉल्व। फिर जाके जब यूनिवर्सिटी लेवल पे उनको करना पड़ता है, तो फिर वही वाले जो अच्छे बच्चे हैं वो आगे आ रहे होते हैं। मोस्टली पेरेंट्स मुझसे डिमांड करते हैं कि मेरा बच्चा जी 10 साल में स्कूल पढ़ रहा है, वो 10 साल में असेंबली में कभी फ्रंट पे नहीं आया, वो 10 साल में कभी किसी क्लासरूम एक्टिविटी में नहीं पार्टिसिपेट किया, 10 साल में किसी फंक्शन में नहीं गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी? इज दैट क्लियर? सो वी नीड अ मैकेनिज्म फॉर इट, कि एक्टिविटीज़ के लिए भी ऐसा मैकेनिज्म हो जिसमें तकरीबन हर बच्चे को मौका मिले। एवरी चाइल्ड मस्ट बी। एक छोटी सी मिसाल दूँ कहीं पे, एक जी, अ स्मॉल चाइल्ड वॉज देयर, आई वॉज ऑल्सो, इत्तेफाक से मैं मॉर्निंग असेंबली में वहाँ पे मैं चला गया, तो वो बच्चा एक आया, उसने कुछ स्पीच करनी थी छोटी सी, कुछ 2-4 लाइनें, जुमला। आई थिंक इट वॉज 6 ग्रेड और 7 ग्रेड। द चाइल्ड वॉज बेसिकली ए स्टैमरिंग चाइल्ड। तो जब वो हेड थी, वो मेरे पास आके मुझे उन्होंने हल्का सा कहा कि सर, थोड़ा सा घबराई हुई थी वो, कि जी एक तो इस बच्चे की फ़र्स्ट टाइम है और ये स्टैमरिंग चाइल्ड है। तो मुझे थोड़ी सी हैरानगी भी हुई कि भाई आपको इस चीज़ की क्या परेशानी है कि आप मुझे परफेक्ट चाइल्ड दिखाना चाह रहे हैं आज आप। और वही हुआ एक्चुअली। जब बच्चा आगे माइक पे खड़ा हुआ, शायद वो भूल गया जो कुछ उसने सब बोलना था, कंफ्यूज था, परेशान था, वो चुप हो गया। मैं थोड़ा सा आगे मूव किया, मैं उसके करीब गया, बक्ट हिम अप, वेरी गुड। पूछा मैम से टॉपिक क्या था इसका? ये टॉपिक था। 1-2 जुमले खुद उसको बताए। मैंने हल्का से 1-2 बात की होगी। द चाइल्ड वॉज बेसिकली स्टैमरिंग, ज़ुबान लड़खड़ाती थी उसकी। जब आगे ऑडियंस जो बच्चे थे, उन्होंने भी जब नोट किया कि मैं उसको बैकअप कर रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा बच्चों ने उसको बैकअप करना शुरू कर दिया। मैंने एक जुमला उसको फीड किया हल्का सा कि आप ये बोलें प्लीज़, वेरी गुड, आप अच्छा कर रहे हो, वेल डन। थपकी दी, थोड़ा साथ में खड़ा रहा, बच्चा आ गया, ऐसा ऐसा बोलना शुरू हो गया। 4-5 उसने जुमले बोले। उसके जुमले क्या, बच्चों ने जज कर लिया था कि आई वॉज बूस्टिंग हिम, आई वॉज मोटिवेटिंग हिम, एवरीबडी अपलॉडेड फॉर हिम। अब बात जहाँ ख़त्म नहीं हुई। इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो इसके बाद की है। हफ्ता 10 दिन बाद उसकी मदर ने विज़िट किया, मुझे बुलाया गया, मुख्तसर कर रहा हूँ कि जी मिलना चाह रही हैं। शॉर्ट करूँ, मैंने पूछा जी खैरियत? उन्होंने कहा जी मैं सिर्फ थैंक यू करने आई हूँ कि मेरा बच्चा ये परमानेंट म्यूट
होता जा रहा था। और हमने जो एक स्पीच थेरेपी का एक्सपर्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट जो होता है, वो हायर किया था। उसने कहा जी मैं इसको कुछ एक्सरसाइज करवाऊंगा, वरना आस्ता साहब इसकी नौबत ये आ गई थी कि ये इशारों में बातें करने पे आ गया था और परमानेंट कई अरसा कई दिन ये एक लफ्ज़ नहीं बोलता था, इस डर से कि ये अकलाएगा। इसके कज़न सराउंडिंग में इसका मजाक उड़ाते थे, गली मोहल्ले के बच्चे भी इसका मजाक उड़ाते थे। उस दिन कहीं आपने इसको जो किया तो कह रहा था कि सर आए हुए थे तो उन्होंने मुझे बहुत शाबाशी दी, अप्रीशिएट किया। सारा दिन घर में आके ये हर किसी को एक ही बात सुनाता रहा कि मैंने आज असेंबली में किया। और उसके बाद अब उस स्पीच थेरेपिस्ट ने कहा है कि इसको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत नहीं है। सो इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर मी जी, कि मेरे शायद इतने वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि नौबत इस हद तक ख़राब थी। बाद में मुझे याद आया कि उस पूरा दिन जब बाद में उसको ब्रेक भी हुई, कुछ और हुई, वो मोमेंट्स मुझसे इग्नोर हुए, वो बच्चा मेरे आसपास ही फिर रहा था। जिस तरह वो शायद सारा दिन चाह रहा हो कि मैं सारा दिन उसको क्या करूं, अप्रिशिएट करूं, बकअप करूं। उसके चेहरे पे एक स्माइल सी थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी, दैट एवरी चाइल्ड इज़ इंपॉर्टेंट जी। कि हमें परफेक्ट बच्चे नहीं चाहिए होते। आपको मुझसे आगे एतराज़ करे, डिबेट करे, उसका हक बनता है कि जी हमने अगर स्पीच करवानी है तो अच्छे बच्चे से करवानी है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि बड़ा फंक्शन है, बड़ा इवेंट है आपका, कुछ और है, तो यू मस्ट गो फॉर द बेस्ट। तो पूरे साल में जो कंपटीशन में आए हैं उनका हक बनता है। लेकिन साल की नॉर्मल रूटीन में क्लासरूम के अंदर डोंट यू थिंक दैट एवरी चाइल्ड मस्ट बी गिवन जी। तो सो एक्टिविटीज़ आर देयर जी। मैं आपके ये जनरल एक्टिविटीज़ और अब आप कहेंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ क्या होंगी, वो हम अपनी मेथोडोलॉजी में डिस्कस करेंगे जी। देन कम्युनिकेशन जी, व्हाट सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज गोइंग ऑन जी। तू कम्युनिकेट होगा तो मुड़ के रिफ्लेक्ट भी तू करेगा जी। आप कम्युनिकेट होगा तो मुड़ के रिफ्लेक्ट भी क्या करेगा, आप करेगा जी। अगर मैं बच्चे को तू कल्चर पे ला रहा हूँ, तू करके बुला रहा हूँ, कॉरिडोर्स में, क्लासरूम्स में, क्लियर द वे आई एम हैंडलिंग इट जी। और उसका बेस्ट वे क्या होता है, कर्टिसी जी। लेकिन साथ एक लाइन लिख लीजिएगा, समटाइम्स यू हैव टू बी काइंड विदाउट बीइंग सॉफ्ट। कुछ लोग कहते हैं सर सख्ती भी तो ज़रूरी होती है। मैंने कब कहा ना करें, मैंने कब कहा ना करें, बट बीइंग कर्टियस, बीइंग सिविलाइज्ड। अब आप कहें जी बीइंग कर्टियस टू अ चाइल्ड, यस टू अ चाइल्ड। मैं कर्टिसी दूंगा तो कर्टिसी रिफ्लेक्ट बैक होगी। ओए कल्चर रिफ्लेक्ट्स बैक ओए, तू कल्चर रिफ्लेक्ट्स बैक तू। जब मैं आप करूंगा, जब मैं जी करूंगा, जब मैं एक्सक्यूज मी करूंगा, जब मैं कुड़ाए पे आ जाऊंगा, जब मैं कैनाए पे आ जाऊंगा, डोंट ड्रैग योर फीट, हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर गेट, डोंट ड्रैग द चेयर। ये वो कम्युनिकेशन है जो चलते फिरते किसी भी इंस्टीट्यूट के कॉरिडोर्स में हो रही होती है। वेदर आई एम टीचिंग दैट चाइल्ड और नॉट, बट आई एम एग्जिस्टिंग देयर ना। मैं जब ये तसव्वुर कर लूँ जी इन क्लास के बच्चों को तो मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ, तो फिर क्या मतलब मैं किसी स्पेसिफिक कैटेगरी का, स्पेसिफिक लॉट का टीचर हूँ। मैं आपको अपने आप को टीचर का टाइटल नहीं दे सकता। फिर मैं अगर गुजरते हुए मुझे कहीं से कुछ भी नोटिस हो रहा है, इफ आई एम मेंशनिंग इट, आई एम पॉइंटिंग इट आउट। मैं देख रहा हूँ बच्चा पाँव घसीट के चल रहा है, मैं उसको सिंपली कह दूँ डोंट ड्रैग योर फीट, या इट डजंट सूट यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी? अगर मुझे कोई कहीं पर लैंग्वेज ऐसी ऑब्जर्व हो रही है, so communication matters a lot जी। and above all जी, what sort of communication? body language, teachers dressing, teachers own language, teachers own movement, everything matters जी। क्लास वर्क, होमवर्क मेथोडोलॉजी में हमारी आएगा जी, क्या इंपॉर्टेंस है ये क्लास वर्क होता क्या है, मैं किसको क्लास वर्क कहूँगा। नॉर्मली क्या समझा जाता है जी, जो मैं पढ़ा के चला गया हूँ क्लास में, ये क्लास वर्क है। नो, नॉट एट ऑल, ये टीचर्स वर्क है जी। दिस इज़ नॉट क्लास वर्क, दिस इज जस्ट डिलीवरेंस। क्लास वर्क हम कहेंगे किसको, मेथोडोलॉजी में आएगा जी। टेक्स्ट बुक क्यों है वहाँ पे जी, एक बहुत बड़ी डिस्कशन है जी। देयर आर टू सिस्टम्स करंटली एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड, वन इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड, वन इज कॉल्ड डिस्क्रीट। डिस्क्रीट क्या होता है, आपका टेक्स्ट बुक सिस्टम है जी। इंटीग्रेटेड वाले कौन से हैं, जो कहते हैं जी टेक्स्ट बुक की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ गोइंग ऑन मोस्टली इन कैनेडा जी। एक सिलेबस आउटलाइन मिल जाए इवन एट स्कूल, एंड टीचर्स देयर विद लिबर्टी टू go for whatever he or she thinks better for the children. दूसरे कौन से लोग हैं, वो कहते हैं नहीं जी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए जी। अब जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है वो कौन से वाले लोग हैं, टेक्स्ट बुक के। आई एम ऑल्सो इन फेवर ऑफ टेक्स्ट बुक जी। क्यों, हम अपनी मेथोडोलॉजी में डिस्कस करेंगे जी टेक्स्ट बुक क्यों ज़रूरी है। मैं फिर बता रहा हूँ, इंटीग्रेटेड वाले क्या कहते हैं, सिर्फ आउटलाइन हो जाए टेक्स्ट बुक की ज़रूरत नहीं है।
पाबंदी ना हो, टीचर कहीं से भी वो मटेरियल उठा के डिलीवर कर दे, बच्चे कहीं से भी उसकी प्रैक्टिस कर लें। ये कौन से इंटीग्रेटेड? डिस्क्रीट वाले कौन से हैं जी? जो कहते हैं कि हर सब्जेक्ट, हर डिसिप्लिन के लिए एक सेपरेट, हर एज ग्रुप के लिए एक सेपरेट टेक्स्ट बुक हो जी। इनके अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्यों ज़रूरी है वो टेक्स्ट बुक, ये हम अपनी मेथडोलॉजी में इसको डिस्कस करेंगे जी। फिर पेरेंट टीचर मीटिंग है जी, शॉर्टली जी, जिसको हमने क्या बना दिया, तनाज़ा एक। हालांकि PTM इज़ बेसिकली देयर जी टू नो अबाउट ईच अदर, मेक इट क्लियर, above all to know about the system, to know about the policy, to know about the mechanism of work, to know about the methodology. PTM सिर्फ इसलिए की जाती है कि बच्चे का करंट स्टेटस क्या है, उसके लिए, उस पर काम करने के लिए कौन सा सिस्टम है, कौन सी पॉलिसी है, कौन सा मैकेनिज्म है, कौन सी मेथडोलॉजी है, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कौन सी बुक है जिसके ज़रिए काम किया जा रहा है, सिर्फ उनको इसकी इंफॉर्मेशन देना। हमने क्या समझ लिया जी, टीचर्स पेरेंट्स को किस लिए बुलाना है कि उनके बच्चे के इश्यूज़ क्या हैं जी। अगर उनको इश्यूज़ बताने के लिए बुलाना है तो व्हाट इज़ देयर स्कूल फॉर? स्कूल का मकसद क्या है? फिर मैं फिर रिपीट करूं, पेरेंट्स को बुला के बच्चे का स्टेटस क्या है, और जो अगर कोई वीक एरियाज हैं, अल्लाह ना करे, उन पे काम करने के लिए मैकेनिज्म क्या है, पॉलिसी क्या है, सिस्टम क्या है, प्लान क्या है, ताकि वो पेरेंट्स के नोटिस में रहे। कहीं ऐसा ना हो कि पेरेंट्स घर में कुछ और कर रहे हों और स्कूल में कुछ और हो रहा हो, जो अक्सर आपने ऑब्जर्व किया होगा। स्कूल की टीचर कुछ और पढ़ा रही हैं, घर की ट्यूटर कुछ और तरीके से कर रही हैं, अक्सर क्लैश आ रहा होता है। बिहेवियरल इशू है, स्कूल में किसी और तरह ट्रीट किया जा रहा होता है और घर में किसी और तरह ट्रीट किया जा रहा है। PTM का मकसद क्या है? सारों को एक पेज पे लाना, सिर्फ उनके नॉलेज में वो चीज़ रहे कि दैट दिस इज़ द प्रॉब्लम, अगर है तो, और उसको सॉल्व करने के लिए दिस इज़ द वे आउट, दिस इज़ द सोल्यूशन। पेरेंट्स मस्ट बी वेल अवेयर अबाउट दैट। इस हद तक बस। या पेरेंट्स के नोटिस में कोई चीज़ ऐसी आई है जो स्कूल वालों से क्या हो रही है, इग्नोर हो रही है, स्किप हो रही है, तो वो सिर्फ उनके नोटिस में ले आए। दिस इज नॉट एट ऑल सम इशू। एंड फाइनल थिंग जी, इन्वायरमेंट जी, माई क्लासरूम इन्वायरमेंट, माई स्कूल इन्वायरमेंट, माई कॉरिडोर्स, माई प्ले एरिया, माई इन, माई आउट, even the way child is there using transport, कि बच्चा स्कूल वैन में आ जा कैसे रहा, दैट ऑल्सो मैटर्स। यूनिफॉर्म क्या है, हाउ विल आई यूज दैट यूनिफॉर्म टू डेवलप सर्टेन एनवायरमेंट। ये सिर्फ यूनिफॉर्मिटी के लिए नहीं है, इट इज देयर टू गिव देम एग्जैक्टिव फीलिंग्स, कि मैंने बच्चे को कैजुअल से निकाल के एक यूनिफॉर्मिटी में लेके आया हूं, टू मेक हिम फील दैट you are not casual, you are executive. At this time you are there with certain activity, with certain purpose, in certain environment that belongs to you. अगर वो बच्चा हैंगिंग टाई के साथ है, ओपन बटन के साथ है, it means I am not achieving the purpose of uniform। कि वो मैंने सिर्फ कलर एक जैसे कर दिए हैं, लिबास कपड़े एक जैसे कर दिए हैं, उसकी सेंस नहीं डेवलप कर पाया मैं। आर यू गेटिंग अ पॉइंट जी? उसके अंदर वो कैजुअल एटीट्यूड को निकाल के फॉर्मेलिटी नहीं ले पाया, फॉर्मल एटीट्यूड नहीं डेवलप कर पाया। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एनवायरनमेंट एंड कैजुअल एनवायरनमेंट, फॉर्मल लैंग्वेज एंड कैजुअल इनफॉर्मल लैंग्वेज। आई एम नॉट एक्चुअली इक्विपिंग दैट चाइल्ड well enough to meet the challenges of future professional studies or professional life। Got it जी? एनवायरनमेंट है, उसमें यूनिफॉर्म एक फैक्टर है आपका, लैंग्वेज एक फैक्टर है आपका, आपके डिसिप्लिन रूल्स, मैं रूल्स नहीं कहता उनको, इवन नॉर्म्स एक फैक्टर है, रिलीजियस नॉर्म्स, यानी इसको मैं क्या लूँ, वैल्यू एडेड एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, सोशल नॉर्म्स, एटिकेट्स, मैनर्स, all these must be there ji, and there can be dozens of more ji। I have mentioned here, you can see on the screen ji, few of them। ये मैंने कुछ चीज़ें मेंशन की हैं, इसके अलावा दर्जनों और हो सकती हैं। अब हमने डिसाइड करना है कि क्या हमारी आज की इस मेथडोलॉजी में ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, क्या ये मेथडोलॉजी हमारी इन सारी चीज़ों को कवर करेगी, टारगेट करेगी। एम आई क्लियर जी?